جی مفتی صاحب آ گئے ہیں جی ماشاء اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ مفتی صاحب کیا حال ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، بٹ صاحب آپ سنائیے، خیریت ہے؟ جی شکر اللہ کا، ذہن نصیب مفتی صاحب آپ آئے ہمارے لیے بڑی یہ قابل فخر بات ہے، تو تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ آپ آئے ہیں ہمارے پاس ہمیں آنا چاہیے تھا آپ کے پاس، تو نہیں جی، میں تو بٹ صاحب ویسے ہی ٹک ٹاک نہ ہونے کے برابر آج کل یوز کر رہا ہوں۔ نہیں لیکن مفتی صاحب ہمیں شرمندگی ہوتی ہے نا، آپ جیسے عظیم انسان ہمارے پاس آئیں چل کے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، ہمیں آنا چاہیے، آپ ہمیں صرف آرڈر کیا کریں، ہم انشاءاللہ حاضر ہو جایا کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ تو نہیں میں نہیں تو بہرحال آپ کو پتہ ہی ہے یا نہیں پتہ کہ میں جی اپنی براڑ تو بہت کم کرتا ہوں، جی اور بس دوستوں کی ہی براڑ پہ کبھی اگر آنا ہو جی تو کوئی براڑ دیکھتا ہوں، اگر چل رہی ہو تو اس کے اوپر پھر مفتی بیٹھ صاحب جاتا آپ ہوں۔ آ گئے تو بہت اچھی بات ہے، اتفاق سے آپ سے پہلے ایک دوست آیا تھا تو اس نے نا ایک سوال کیا تو ہم تو خاموش ہو گئے، ہم نے بولا بھی یہ کسی مفتی صاحب سے ہی پتہ کریں، تو اتفاق سے آپ آ گئے ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال رکھ دوں اس کا۔ جی 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 فرمائیں۔ وہ بندہ کہہ کے گیا ہے کہ پتہ نہیں کون سی صورت تھی جس کا وہ آپ کو کسی کو یاد ہے عابد جی صاحب؟ میں بیان کر دیتا ہوں۔ جی آپ بیان کر سر دیں پلیز۔ جی السلام علیکم مفتی مبشر صاحب محترم، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام جناب عابد صاحب، کیا حال ہے جناب؟ جی خیریت، شکر الحمدللہ۔ سر وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے نا، وما محمد الا رسول، جی 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 وہ قد خلات والی، تو اس کے اوپر وہ یعنی کہ اسی پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ بعد میں قتل یا موت کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے جو پہلے رسول گزر چکے ہیں ان کا بھی مراد یہی ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ جی اچھا، یہ والا سوال تھا انہوں نے۔ تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، تو میں نے کہا بھی ہمیں تو علم نہیں ہے اس بات کا، لیکن یہ ہے کہ کوئی مفتی صاحب روشنی ڈالیں گے، تو آپ اتفاق سے آ گئے ہیں تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا، تاکہ ہو سکتا ہے وہ بھی سن رہے ہوں اور دوسرے دوست بھی سن لیں اور بات کلیئر ہو جائے اور ہمیں بھی پتہ چل جائے، پلیز مفتی صاحب جزاک اللہ۔ وہ چلے گئے ہیں کہ یہاں ہی ہیں؟ ادھر براٹ میں تو نہیں ہے، نیچے شاید بیٹھے ہوں، پتہ نہیں ہے نہیں۔ اچھا، کیونکہ معترض یا سائل سامنے ہونا تو پھر بات کچھ اور ہوتی ہے، اور اس قسم کے غیبی سوالات تو وہ پھر ہزاروں نہیں شاید لاکھوں کی تعداد میں ہیں، تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے جوابات تو ہم نے بہت دفعہ دیے ہوئے ہیں، تو جی جی اصل بات ہوتی ہے کہ آمنے سامنے آ کے کسی صاحب علم سے بات کی جائے، تو یہ جی قادیانی ٹھیک، لوگ سامنے تو بات کرتے نہیں ہیں، جی اور یہ نیچے ایک بندہ لکھ رہا ہے کہ جی مفتی صاحب پلیز احمدیت پر بات کریں، ہاں جی ہاں جی، تو آپ اوپر آ قادیانیت جائیں پر بھائی ہی جان، بات کر رہے ہیں جناب۔ آپ اوپر آ جائیں بھائی جان، اگر بات آپ نے ہاں احمدیت پہ جی کرنی جی، ہے تو مفتی صاحب آئے یہ ہوئے ہیں تو بشارت آپ صاحب آ قادیانی ہیں کیا؟ جائیں۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں جی، ہاں جی یہ قادیانی، ہاں ہاں، تو لیکن بشارت صاحب لیکن جناب یہ آپ کا بھی اگر یہ سوال ہے تو آپ کر لیں۔ نہیں اپنا مفتی صاحب پتہ کیا ہے، یہ جو ہے نا یہ جرمن کی پیدائش ہیں، تو یہ ان کے پاس یعنی کہ یہ کوئی سوال جواب نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں میں اچھا، بس یہ سننے سوال میں جواب نہیں دلچسپی رکھ، کرتے، تو نہیں میں نہیں تو وہ نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا، تو یہ فرما رہے تھے بشارت صاحب کہ گالی گولی نہیں دینی چاہیے، اور گالیاں دینی اچھی بات نہیں ہے، بڑی اچھی گفتگو کرنی چاہیے، لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے، تو مجھے یہ بات سن کے نا بڑا اچھا لگا، اور میں اس لیے کال پہ آیا ہوں، تو میں نے جی کہا چلو میں آمنے سامنے جا کے بات کرتا ہوں، کیونکہ جب ہم مرزا صاحب کی کتابیں دیکھتے ہیں تو جی وہ تو گالی کے بغیر تم بات کرتے ہی نہیں ہیں، تو مجھے نا یہ سن کے بڑا شوق، وہ کیا انگلش میں کہتے ہیں، شوق شاک ہوا ہوا۔ میں۔ ایک منٹ مفتی صاحب معذرت، بھائی جان اگر آپ نے اوپر آنا ہے تو یہ جو گیسٹ کا نشان بنا ہے نا دو بندوں کا، وہاں پہ آپ انوائٹ کریں تو آپ اوپر آ جائیں گے اور آ کے مفتی صاحب سے بات کر لیں آپ۔ ہاں ہاں ہاں، کوئی بات نہیں، تو
मैं तो बहुत जनाब परेशान हुआ कि कादियानी तलीमात और हैं, कादियानियों की तलीमात कोई और हैं। क्योंकि मिर्जा साहब की तलीमात तो ये है कि गाली निकाल के बात करो, गाली जी के जी। बगैर तो तबलीग होती नहीं ना। लो जी, जब अपना तक तो मुफ्ती साहब ये आ गए हैं नीचे से, जिन्होंने कहा है कि कुछ अहमियत पे बात करें, तो इनसे बात आप करें। हाँ जी नोमान भाई। जनाब नुमान साहब। जी जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, जी क्या हाल है जी सबका? वालेकुम जी। सलाम। वालेकुम जी, शुक्र अल्लाह का जी। आप सुनाएं। जी मैं मुसलमान हूँ, अहले सुन्नत से हूँ। तो मुफ्ती साहब अच्छा आपसे अच्छा। एक सवाल था कि ये क्या आपको लगता है इनका फ्यूचर क्या है, अहमदियत का, जमात का, ये कहाँ जा रही है? इनका हम माइंड कैसे चेंज कर सकती हैं इनको? कि आपको क्या लगता है इनका आगे 10 साल बाद, 15 साल बाद जमात का क्या नज़र आ रहा है? नहीं, हम तो 10 साल पीछे की बात करते हैं। आगे तो तब चले कि जब पीछे बैकग्राउंड अच्छा हो। पूरी दुनिया के अंदर टोटल कादियानियों की तादाद, इनके सारे फिरके, टोटल सारे फिरकों को मिला करके 3 लाख से ज्यादा नहीं है ये पूरी वर्ल्ड के अंदर। और अच्छा रोला ये डालेंगे, ओहो हम तो दुनिया के किनारों तक पहुंच गए, दुनिया के 200 तो 20 मुल्कों में हम पहुंच चुके हैं, तो यूं है तो वो है, ये हालात हैं। तो ये सब झूठ बोलते हैं ना फिर? हाँ बिल्कुल, वो तो मिर्जा साहब से इन्होंने लिया है ना। मिर्जा साहब माशाल्लाह इस चीज के माहिर थे, बहुत ज्यादा माहिर थे ना। तो जैसा कि मैं अभी बात कर रहा हूँ गाली के ऊपर, तो जी। मिर्जा साहब देखें, वो रूहानी खज़ाइन जिल्द 9 सफ़ा 31 के ऊपर फरमाते हैं, हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और हलाल ज़्यादा ही नहीं। मतलब ये कि नुमान साहब, आप मिर्जा साहब की फतह के कायल हैं कि नहीं? नहीं, मैं तो मिर्ज़ा को लानत देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं मानता। हाँ, मैं तो फिर सुनता रहता हूँ आपको लाइव। वो हरामी कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मेरी फतह का कायल नहीं है वो हरामी है, हराम ज़्यादा है, अस्तगफिर अस्तगफिर आप हलाल ज़्यादा नहीं। और मुझे भी गाली दी है उन्होंने, मुझे भी वो यही अस्तगफिर। कह रहे, जो भी मिर्जा साहब को नहीं मानता वो हरामी है। ये है उसको तो एक तबलीग का काफिर मियार। कहलाती है ना, जो मिर्ज़ा को नहीं मानता वो काफिर है इनकी नज़रों में। चलो हाँ काफिर का तो नहीं, चलो। देखे काफिर होना एक अलग चीज है, काफिर तो जी। हमारे नजदीक भी बड़े हैं, लेकिन ये तरीका तो नहीं है कि काफिरों को गालियां निकाली जाए। नहीं नहीं नहीं, देखें मुफ्ती साहब, आपकी बात मैं काट रहा हूँ, मादरत। नुमान भाई देखें, काफिर होना एक और चीज़ है, लेकिन आप किसी को ये कहना कि हराम ज़्यादा है, आप तो हाँ यार ये वही तो ना, तौबा गाली देना एक अलग चीज है, काफिर कहना, काफिर नहीं तो नहीं एक नहीं नहीं। हुक्म बताना है ना। अब देखे मैं जी मुफ्ती हूँ, मुझसे जी। कोई आप शरी मसला पूछते हैं, अगर तो हुक्म में कुफर लगता होगा तो मैं बताऊंगा भाई इस पे हुक्म में कुफर लगता है। सही तो बात। ये थोड़ी है कि मैं उसको कहूँ, हालांकि वो मसला पूछने के लिए आया, तो मैं कहूँ ओए हरामिया, ओए नहीं, ये कुत्ते गलत बात, कमीनिया जलीला। ये बहुत चलो, गलत। ये या आप तरीका ये गलत कहें कि है, मतलब ये या काफिर होना एक अलग चीज है। बिल फर्ज हम लोग मिर्जा कादियानी के नजदीक काफिर थे, तो ये तरीका तो नहीं है कि दुश्मन हमारे बियाबानों के खंदीर हो गए और इनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं। रूहानी खदैन अस्तगफिरुल्लाह जिल्द 14 सफा 53 के ऊपर। हाँ जी। तो मुफ्ती साहब अस्तगफिरुल्लाह। जब इनकी लाइफ पे जाती हैं तो ये मिर्ज़ा पर बात क्यों नहीं करते? ये हाँ नहीं, कुरान और करेंगे हदीस भी पे आ नहीं जाती ना, हैं। करें भी नहीं, गे भी नहीं, वो आपको उलझा के रखेंगे। जैसे मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि आपका मसलक कौन सा है, वो सबसे पहले आपका मसलक पूछना है उन्होंने। हाँ जी, मसलक दस। अच्छा, मसलक पूछने के पीछे ये होती है इनकी कि फिर हम इसको बताएंगे कि ये अहले सुन्नत है, तो बताएंगे कि वो देखो जी देवबंदियों ने तुम्हारे बारे में ये कहा है, तुम्हारे अल्लाह हज़रत के बारे में, और वाबियों ने ये एक कहा है, तो शियों ने ये कहा है। अगर कोई बिल्कुल बंदा बिल्कुल। हो जी मैं शिया हूं, तो उसको चलो जी देखो जी बरेलवियों ने तुम्हें ये कहा है, तो वाबियों ने कहा है, देवबंदियों ने कहा है। अगर कोई वाबी हो तो देखो जी ये देवबंदियों ने तुम्हें ये कहा, तो बरेलवियों ने, तो शियों ने ये कह दिया। वो ये ड्रामा होता है बस, और कोई मसला नहीं होता बीच में कि भाईजान, हवा अगर इधर आप की एक चले उधर की चले। वो जी कहते जी ने ना एक जनाब, जी जी। मरासी दा पुत्र मुफ्ती अपने साहब मुफ्ती प्यो साहब नु मादरत कहन के लगा साथ। कि अब्बास पूरा पिंड भी मर जे ना जी ते
ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ ਭਾਈ पूरी दुनिया ही काफर क्यों ना हो जाए पूरी दुनिया ही गैर ईमान क्यों ना हो जाए मिर्जे कादियानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हो या मुर्दा हो आसमान पे हो या जमीन पे हो हाँ सही बात। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बात यह है कि मिर्जा कादियानी एक जानी आदमी था शराबी था और बड़े गलत काम करता था बड़े गुनाह करता था उसके दलाइल मौजूद है हमारे पास मुफ्ती तो साहब भाई इनकी वो सब कुछ मिर्जे भी पर हो तो गया तो वो चीजें कैसे खत्म करोगे वो तुम्हारे सामने एक मुअम्मा है इसको खत्म करो किसी तरीके से मुफ्ती वो साहब ये मिर्जे खत्म पर तो तो ये हो नहीं बात ही नहीं सकता उन्होंने करते। फिर ये तरीका निकाला हुआ है अच्छा जी वो मसलक बताओ तो फिरका बताओ तो तुम आपस में काफर हो तो ये उसने उसको काफर कहा तो उसने उसको कहा तो देखो ना जी हजरत ईसा को जिंदा साबित करके दिखा दो तो देखो ना जी वो नबूवत जा रही है ना जी देखो जी तो देखो जी अब बताएं इन चीजों से ये वो चीजें हैं कि दरख्त के पत्ते झाड़ने वाली बात है और भाई जड़ तो नीचे मौजूद है सही बात। मिर्जे की सही जात बात। का क्या करना है तुमने वो किस किनारे पे लगाओगे हजरत ईसा आपको मुर्दा साबित कर भी दो तो मिर्जा को किस किनारे पे लगाना है वो तो बताओ ना हाँ जी वो शराबी था तो वो शराबी है वो शराबे पी पी के मर गया शराब पी पी के वो दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूत्र का उसको मर्द लगा हुआ था वो करके मर गया वो जानी आदमी था उसने तरह तरह की रंडियां अपने पास रखी हुई थी सही हाँ बात। ये कोई हंसी वाली बात नहीं है इनकी किताबों में नहीं लिखा नहीं हुआ है हाँ बिल्कुल मेरे पास लिखा हुआ दलाइल है। मौजूद हैं मेरे पास किताबें मौजूद हैं अभी कोई मुझे कहे अभी अगर बट साहब मुझे अभी कहे मैं इधर से झट किताब खोल के ये लो जी ऐप है आज हेलो ऐप ये अपना मुफ्ती साहब ये खान साहब आए हैं ये जो है ना नीचे बड़ी कोई गलत बातें कर रहे थे गाली वगैरह तो इनसे ज़रा बात करते हैं आप करें इनसे बात। जी खान जी साहब खान आपने साहब खान साहब माइक खोलें अपना और बात करें नीचे आपने बहुत गंदी बात लिखी थी अभी आप बात करें और दलील के साथ बात कीजिएगा। खान साहब अगर तो ये गालियां दे रहे थे तो ये फिर वो खान साहब की फेक आईडी है अच्छा खान साहब नीचे की ये आदत नहीं है गालियां देने की नीचे उन्होंने लिखा तुम अपनी माँ को ले आओ और हमें दे दो इन्होंने नहीं लिखा नहीं खान ये साहब। फिर फेक आईडी अच्छा वो खान साहब को तो मैं जानता हूँ वो गालियां नहीं देते पता नहीं अब फिर ये माइक खोलें बात तो करें खान साहब। हाँ फेक आईडी है इसलिए माइक नहीं ओपन कर रहे अच्छा अच्छा इनको अच्छा नीचे ऐसा उतार भी दे होता ऐसे है। आपकी बराड के ऊपर असर डले पर अच्छा ऐसे भी होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम खान साहब ही हैं जी शाह जी मैं वो एक आ गया था दरवाजे पे एक साली मेरी का बेटा था मैं उधर चला गया था यहाँ पे रूम में फोन रखा हुआ था। अच्छा तो खान साहब ये आपने लिखा है तुम अपनी माँ को ले आओ। और शाह जी के बारे में उसने गलत कमेंट किया था इसलिए मैंने लिखा उसको। अच्छा उसको लिखा है मैं क्या अल्लाह माफ़ करे पता नहीं हमें कह रहे हैं आप। नहीं वो अच्छा, देखिए मैंने उसको ऐड करके उसको जो ना रिप्लाई किया है उस चीज़ पे। अच्छा 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 अल्लाह खैर। ये Sorry, हमारे मुझे उस्ताद समझ खान मोहतरम साहब के अपना पास ये एको हो रहा है अपने माइक को ठीक करो। नहीं हमारे उस्ताद मोहतरम के बारे में कोई अगर कुछ गलत बोलेगा तो फिर हम लोग चुप नहीं रह सकते हैं ना। हाँ कुछ ना नहीं कुछ मैं रिप्लाई तो करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता चला मैं गलत था। मैं समझा शायद कोई फेक आईडी है या कोई और बंदा है या कोई जमात अहमदिया का बंदा है मेरा तारफ़ असल में नहीं हुआ था आपसे। अच्छा आपने उधर किया चलें अच्छा हो गया बहरहाल ठीक है जी मुफ्ती साहब प्लीज़ आप जारी रखें बात। अच्छा तो ये मौजूआत जो है ना ये सारे दुनिया हाँ के मौजूआत छेड़ लो जी सवाल वहां पर ही खड़ा रहना है भाई अगर कादियानियों से बात करने के लिए आप निकलेंगे उन्होंने तो भाई एक से बढ़ के एक मौजू आपके सामने लेके आना है बताएं फिर क्या करेंगे सही 24 बात। घंटे उस मौजू पे गुफ्तगू होती रहेगी टिक टाक के ऊपर मैं जिस दिन से आया हूं बस यही देख रहा हूं मतलब मौजू पे वो आते ही नहीं है क्योंकि वो सवालात ही माशाल्लाह इनके बड़े हैं ये सवाल मेरा ये सवाल मेरा ये सवाल मेरा ये सवाल सवाल पे सवाल दागते चले जाएंगे कि मतलब ये कि आप लोग बैठ के दिन भर उन सवालात के जवाब देते रहे मिर्जे की जात की तरफ आए नहीं ये है असल में पॉलिसी मुफ्ती साहब जब ये भी है मैं इनकी लाइव ऑन करता हूँ मिर्जे पर बात नहीं होती बिल्कुल भी। हाँ वो नहीं करेंगे भी नहीं ना कभी भी नहीं करेंगे
उनको पता है जब बात हुई तो बीच में से जनाकारी निकलनी है, शराब नोशी निकलनी है, रंडीबाजी निकलनी है, दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूत्र निकलना है, 16 दिन तक पखाने की राह से खून आते रहना, क्या मौजदा डिस्कस होना है, बातें होनी है। तो इससे बेहतर है इनको किसी और तरफ ही लगा के रखो। हाँ, ये है पॉलिसी, कादियानी पॉलिसी। ये असल मौजू की तरफ, मुद्दे की तरफ आगे काम तो हो जाना है खराब। अब होता यह है कि हमारे दोस्त और हमारे तालिबे इल्म, उनको जी तो पता है, उनको पता है, उनको ये चीज पढ़ाई गई है, उनको यही सिखाया है उनके उस्तादों ने कि ना बेटा मौजू ते रखना है, गल मौजू ये है मिर्जे की जात और किरदार। तो तुम अपनी बराड़ करो तो मौजू यही छेड़ना। सही बात। तो हाँ, मुफ्ती साहब कोई और इनके मौजू हाथ पे के हमने पीछे बात कौन करनी है? नहीं है, ये बात। पीछे इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? ये मस्जिदें कैसे बना रही हैं? ये अब चंदा वो इकट्ठा सपोर्ट करके तो बना फिर रही हैं? यही है ना, सपोर्ट वही लोग हैं कि जिन्होंने मिर्जे कादियानी को खड़ा किया था। यहूदियों का अल्लाह कार है, यहूदियों ने खड़ा किया। यहूदी भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन है और उन्होंने ही खड़ा किया। नीचे माजरत के साथ अपना और नीचे जो इसराइल बंदे को आज तक पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया, और पूरी दुनिया के किसी एक मुसलमान की मस्जिद वहां पे नहीं है, एक मुसलमान इसराइल के अंदर नहीं है, जबकि अभी भी इसराइल के गुंडों ने मुसलमानों के ऊपर, नहिते मुसलमानों के ऊपर जो मजालम ढा रहे हैं, अभी तक ढा रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने। आप अंदाजा कीजिए कि कादियानियों का जो मरकज है वो इसराइल हाइफा के अंदर है। हाइफा के इसराइल की फौज के अंदर कादियानी शामिल है, वो ही गोलियां बरसा रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। वो ये कादियानियों ने, यहूदियों ने खड़ा किया कादियानियों को, और ये यहूदी सपोर्टर हैं, और हम प्याला और हम नवाला हैं यहूदियों के और मुसलमानों के दुश्मन। जी सही बात। ये नीचे बंदे गालियां दे रहे हैं, तो यार जो भी बंदा है ना ऊपर नहीं आया वो हुआ गालियां गैरत नहीं है दे रहे, आप वो लोग, मिर्जा साहब की वो तलावत कर रहे हैं। मिर्जा साहब तो भी तो यही व्हाट्सएप कर आप लेते। उनको जो म्यूट कर दें, आपके अंदर व्हाट्सएप उनको इतनी म्यूट कर गैरत, दें। नहीं म्यूट नहीं करना, लोगों को देखने दे, असल हकीकत पता चलनी चाहिए ना। ना तबलीग हो रही है अच्छा भाई, शाह जी, दुनिया के किनारों शाह तक जी, तबलीग पहुंच रही है, तबलीग पहुंचनी चाहिए। तबलीग ऐसे तो नहीं ना पहुंचेगी, जब तक मुफ्ती गाली ना साहब आपका लिखेगा जो कादियानी यूट्यूब तो चैनल तबलीग है वो कैसे काफ़ी, पहुंचेगी। यूट्यूब चैनल तो बहुत अच्छा है भाईजान नीचे आपका, जो भी बंदे उसमें बकवासात काफ़ी कर लोग रहे हैं, देखते मैं हैं। उनसे गुजारिश करता हूँ कि ऊपर आएं और अपनी गैरत का मुजाहरा करें। डरते क्यों हैं? ये बुज़दिलों का काम होता है नीचे बैठ के गालियाँ देना। मुफ्ती साहब आए हैं, आप बात करें, अगर आप सच्चे हैं तो ऊपर आएं। ये क्या बात है नीचे बैठ के गालियाँ देना? आपके जो जो जिनको आप नौज़ुबिल्लाह नबी कहते थे वो भी गालियाँ देते थे, आपने भी गालियाँ पकड़ ली हैं। इसका मतलब है वो बिल्कुल ठीक है। अभी मुफ्ती साहब ने जो रेफरेंस दिए हैं वो झूठा करके साबित करें, इनको आए ऊपर। नीचे बैठ के गालें देने से क्या आपको चार चांद लग जाएंगे? ये बुज़दिलों के काम है, ऊपर आए। बट साहब वो झूठ कह रहे जानते हैं हैं कि कि मुफ्ती साहब मुफ्ती झूठ ना 100% बोल। सच चलो बात मैं कर रहे हैं। आपको फिर, आपने फिर झूठ देखे ही नहीं है। आजिज की किताब है मिर्जा गुलाम कादियानी की शोहरा अफाक 200 झूठ। हाँ जी, तो कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ कि याद करोगे कादियानियों, इससे पढ़ के सुनाने माशाल्लाह। लगा। लो डुब के मर जाओ, हुण तुहानू सामने पे लाइव हाल दिखाण लगे। अच्छा जी, रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 209 के ऊपर आपके गाली गलोच वाले मसीह साहब, मसीह गाली गलोच लिखते हैं, अहादीसे सच्ची। सहीहा से भी साबित होता है कि मसीह मऊद 6,000 में पैदा होगा। अहादीसे जी सहीहा, सही हदीसों। वाह। मैं कहता हूँ दुनिया की एक हदीस, पूरी दुनिया की एक हदीस, ज़ईफ नहीं, मौजू। अच्छा, मौजू हदीस ले आओ, मुंह मांगा इनाम ले लो। अल्लाह अकबर। जबकि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, ओ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, जिसने मेरी तरफ झूठ की निस्बत की उसको चाहिए अपना ठिकाना जन्नत में बनाए। सुने, ये तो अभी एक झूठ है, इसके अंदर मैंने मिर्जे की बयान करदा 200 हदीसें जमा की हैं, ओह, सब हदीसें ही। कि वह हदीसों अच्छा। में आया, हदीसों में आया, कोई नहीं आया, कहीं नहीं आया। मुंह मांगा इनाम का ऐलान किया हुआ है
کتاب کو لکھے اور چھپے ہوئے بھی کوئی 10 سال سے شاید زیادہ ہو گئے، آج تک ایک چیز کا بھی جواب نہیں آیا، اچھا ماشاءاللہ، لو جی ایک چیز کا دو جواب نہیں کے آیا۔ مار جو۔ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 118، آپ کے مسیح گالی گلوچ صاحب فرماتے ہیں بعض احادیث میں بھی آ چکا ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا۔ صرف ایک موضوع حدیث لے آؤ، منہ مانگا انعام ہم سے لے لو، اللہ یہ گور یہ میدان نکلو میدان میں۔ واہ، جھوٹ کی سبحان بات اللہ۔ کی تھی نا، مفتی جھوٹ نہ بول، اب فیصلہ کر دو جھوٹ میں بول رہا ہوں کہ تمہارا مسیح گالی گلوچ جھوٹ بول رہا ہے، پھر کہنے صحیح بوٹا بات۔ گالاں کٹ دے نیچے بوٹا کسی کی نے لکھا ہے مرزا کو چھوڑو، عیسیٰ کو برواؤ۔ شیطانی خزائن جلد 12 صفحہ 75، مسیح گالی گلوچ صاحب فرماتے ہیں بعض احادیث اور آثار نبویہ میں بھی ایسا ہی آیا تھا کہ اس مہدی موعود پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، سو وہ سب لکھا ہوا پورا ہوا۔ صرف ایک حدیث لے آؤ، منہ مانگا انعام لے لو۔ واہ، حدیث صحیح نہیں، حسن نہیں، غریب نہیں، ضعیف نہیں، موضوع لے آؤ، موضوع حدیث کہ واہ، سابقہ کتابوں کے اندر کہیں پہ ویسے ہی کسی نے وہ لکھی ہو جھوٹ، جس کو ہاں موضوع کہتے ہیں، جو گھر میں بیٹھ کے حدیثیں بنائی جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں موضوع، یہ موضوع حدیث ہے، وضع کی ہے صحیح کسی۔ بات۔ جیسے حدیث مرزا ضعیف قادیانی یاد بناتا تھا۔ رکھیے گا، حدیث ضعیف کے متن کے اندر شک نہیں ہوتا، اس کی سند کے اندر شک ہوتا ہے، اس کی سند ڈاؤن ہوتی ہے، اس کی راوی جو ہوتے ہیں ان میں راویوں میں اس کو یہ کہ راوی کے اوپر کوئی تان ہوتا ہے، اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ وہ ضعیف حدیث بھی بعض معاملات کے اندر معتبر ہوتی ہے، اور بعض معاملات کے اندر وہ ضعیف بھی تقویت پکڑ جاتی ہے، یہ تو ضعیف حدیث کا حکم ہے۔ میں تو موضوع مانگ رہا ہوں، تو موضوع لے آؤ، یہ تو ابھی صرف تین بیان کی ہیں، تو موجود ہیں۔ اور 10 سال تو ہو گئے مفتی صاحب آپ کو ہیں یہ چیلنج کیے ہوئے، 10 سال ہو ہاں گئے یہ یہ کتاب کے شروع میں چیلنج موجود ہے، اور نیٹ مفتی کے اوپر صاحب بھی جب ان کو کتاب موجود ہے، نیٹ کے اوپر موجود ہے، مفتی اچھا صاحب جب پی یہ ڈی ایف کی کتابیں ان کو صورت میں پیش موجود کرتی ہیں، قادیانیوں کو جب یہ ماشاء کتابیں اللہ، پیش کرتی ہیں، یہ کہتے ہیں تم یہ صحیح نہیں ہے، کس نے لکھی ہے؟ تمہارے اپنے اسکالروں نے لکھی ہے، یہ ہمارے مرزا کا صاحب یہ نہیں ہے، انہوں نے پھر اپنی کتابیں بدل دی ہیں ساری۔ وہ بدلے جائیں، کتنی بدلیں گے، وہ سب کچھ موجود ہے، نہیں بدل سکتے، میں کہتا بدلیں گے ہوں پھنس جتنی جائیں گے، مرضی نعمان بھائی جتنا جتنی مرضی مرضی بدلیں، بدلنے۔ دیکھیں مطلب یہ 10 کہ سال اب میں عاجز اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے سوشل میڈیا پر تقریباً کوئی 25-26 سال تو مجھے راؤنڈ بورڈ ہو گئے ہیں سوشل ماشاء میڈیا، اللہ ماشاء یعنی یوں سمجھ لیں کہ سب سے پرانا سوشل میڈیا کا ختم نبوت کا مجاہد میں ہی ہوں، صرف ایک، اللہ، میں نے بہت سنا آپ کو، میں آپ نے یعنی تو وہ پہلا پال کیمونسٹوں سے ٹاک کے پہلے دن سے لے کے بات کر رہا ہوں، اس ٹائم کا جی بندہ ابھی شاید کوئی بھی نہیں، وہ جس دن میں آیا تھا پال ٹاک کے اوپر اس دن کا بندہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا سب سے پرانا میں ہوں۔ ماشاء اللہ، اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مرزے کی کتابوں کو پیا ہوا ہے، وہ پڑھا نہیں ہوا، اس کی ٹوٹلی کلہم، ان کے اخبارات، ان کے رسائل، ان کے چیزیں رٹی رٹائی، تو بڑی بات اور ہے وہ مفتی صاحب۔ پہلے سے محفوظ ہے ہمارے پاس، اس کے اصل سکین یہاں لائبریری کے اندر، کتابیں، اصل چیز، ہر چیز فیلڈ ہے نا ہماری، بدلیں گے بھاگ کے جائیں گے کہاں؟ اب رونا یہ ہے کہ ویب سائٹ کے اوپر جب تبدیلی کرتے ہو نا تم تو وہ جی پکڑی جاتی ہے، ان کی ویب سائٹ ہے الاسلام.org، اس جی کے اوپر ایک چھوٹا موٹا بھی جو ہے پروگرامر یا جو اس فیلڈ کو سمجھتا ہے، اس معاملے کو، سوشل میڈیا کو، جی تو یہ چوری وہ پکڑ سکتا ہے آسانی سے،
ایک جی جی آپ ویب سائٹ ہے آرکائیو، کسی بھی ویب سائٹ کا لنک اس کے اندر ڈالو، وہ آپ کو تبدیلیاں بتائے گا کہ یہ جس کا لنک تو نے مجھے دی ہے نا، فلاں فلاں دن اس ویب سائٹ کے اوپر یہ تبدیلی کی، وہ آپ کو بل پوری ہسٹری جب سے وہ ویب سائٹ بنی ہوتی ہے نا، وہ ساری ہسٹری آپ کو بتا دے۔ مفتی صاحب قائدیانی اپنے ایک ہے ان میں بات ہی اپنے بچوں کو تعلیم بہت دیتی ہیں، اسٹرانگ کرتی ہیں اپنی جماعت کو کسی طرح سے کہ یہ نہیں ڈاکٹر کون سی بناؤ تعلیم دینی انجینئر ہے؟ بناؤ گالی ان گلوچ کو۔ کے علاوہ کون سی آج تک میں نے تو دیکھیں تعلیم سے کی بات یہ ہے، تعلیم دنیاوی تعلیم شاید آپ کہہ رہے ہیں، یہ ہاں کہہ رہے جی ہیں ہاں جی، دنیاوی، ہاں ہاں وہ تو دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے بالکل، وہ چندے اور نہیں یہ لینے ہوتے، چندے تو لینے ہوتے ہیں نا، پھر ظاہر ہے دنیاوی ہاں تعلیم ہاں وہ دیں تو ہے نا، بس جو اللہ کا ایک بچوں کو نظام شروع ہے سے ہی وہ جب پیدا ہوتی ہیں سمجھانا شروع کر دیتی ہیں پڑھو ظاہر پڑھو ہے اس میں پڑھو، اپنا مفاد ہے نا جماعت ان کو وہ۔ ٹرین کرتی ہے۔ جی جی صحیح بات۔ جی مفتی صاحب پلیز، یہ معاملات ہے۔ یہ دیکھنا آپ نیچے دیکھیں نا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا جی تو سامنے بلا رہے ہیں، آؤ یار بات کرو، کوئی صحیح گالی بات، نہیں، گالی کوئی کسی بھی نہیں، صرف میں مرزے کی حیران، کتاب پڑھ کے سنائیں گے، اس کتاب کا نام انہوں نے گالی رکھا ہوا ہے کہ مفتی تو گالیاں دیتا ہے۔ میں اچھا نے میں حیران ابھی ہوتا یہی ہوں، کوئی میں ایک آپ کی بندہ میری گواہی دے دے جب سے میں یہاں آیا ہوں کوئی ایک گالی دی ہو، جب سے میں پہلے دن پال ٹاک پہ آیا تھا اس دن سے لے کے آج تک کبھی ماشاء سوشل میڈیا پہ کوئی گالی دی ہو، اللہ کوئی ماشاء بتا اللہ، دے میرے بارے میں، صحیح بتا دے۔ بات میں تو مرزا کی کتابیں پڑھتا ہوں، صحیح بات۔ میں اچھا میں کہتا ہوں، معذرت اب دیکھیں ایک بات میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جی وہ ایک قادیانی کتی کے بچے، یہ گالی ہے کہ نہیں؟ کوئی بتائے بندہ، جی 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 بتائے، تھوڑا سا اونچا ہاں بتائے، کوئی مسئلہ نہیں، جی جی گالی بنتی ہے جی گالی بنتی ہے نا۔ جی میں کہتا ہوں یہ مرزے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، مرزے قادیانی نے نذیر کو کہا ہے، نذیر صاحب کو کہ یہ کتی کا بچہ ہے، ثبوت میرے ذمہ میں دے دیتا ہوں، صحیح بتائیے کہ یہ گالی آپ کہہ بھی رہے ہیں، یہ گالی ہے، مبشر سے نکال بھی رہا ہے، یہ کھاتے کس کے میں جائے گی؟ وہ مبشر شاہ کے جائے گی، یا مطلب میں ناقل ہوں، میں نقل کر رہا ہوں تو منقول انہو سے کی طرف جائے گی؟ بتائیے۔ صحیح بات جی السلام علیکم مفتی صاحب، اگر رمضان مبارک میں آپ نقل بھی نہ کریں تو اچھی بات ہے، نہیں کیوں نہ کریں، یہ تو مطلب گالی رمضان میں آپ رکے ہوئے ہیں تو اچھی بات ہے، رمضان میں آپ نہیں، یہ گالیوں سے گالی رک ہے گئے کہ ہیں۔ نہیں کتی کا بچہ؟ ویسے نہیں میں کہہ نہیں رہا ہوں کہ بس دیکھیں منہ سے یہ نذیر نہ صاحب سے نکالیں پوچھ نا، لیتے ہیں، نذیر صاحب یہ کتی کا بچہ گالی ہے کہ نہیں؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں نکالنا نا، اپنے منہ سے نہیں ویسے نکالنی ہے گالی، کہ نہیں؟ پہلے بتائیں تو صحیح، گالی یہ ہے تو کہ نہیں؟ کیونکہ ماہر آپ ہیں گالیوں میں، آپ بتا سکتے یار ہیں نا چلو گالی چھوڑ ہے، دے، میں ماہر گالی باز ہوں، ایکسپرٹ ہیں یہ آپ، کتی کا بچہ اسپیشلائزڈ گالی ہیں ہے کہ نہیں؟ آپ، گالی مجھے تو لگتی ہے، آپ کو پتہ نہیں لگتی اچھا آپ شاید۔ کو لگتی ہے تو ہاں یہاں پر ایک تو حوالہ میں رمضان آپ میں کو، تو آپ رمضان میں تو رک جائیں نا چلو رک گیا مفتی جی، صاحب، چلو ہیلو رک گیا چلیں جی، جزاک اللہ، رمضان میں رک جائیں، اس کے بعد پھر بے شک آپ کر لیں، رمضان میں تھوڑا کنٹرول کریں، شیطان اچھا بند ہو جاتا ہے یہ رمضان میں کتاب تو۔ ایک یہ منٹ، اچھا السلام علیکم بٹ صاحب، یہ نذیر نذیر بھائی صاحب کہاں اس صاحب، پہنچ کتاب کو رہے ہو؟ جانتے ہیں آپ؟ نذیر نذیر صاحب بھائی تمہارا نذیر جو صاحب اس اپنا کتاب کو مرزا جانتے ہیں بول آپ؟ کے گیا، نذیر بھائی ایک منٹ ذرا نذیر صاحب خاموش اس رہو، کتاب کو جانتے ہیں آپ؟ نذیر جی بھائی جی جی خاموش رہو، جانتے ہیں آپ۔ نذیر صاحب اس نذیر کتاب کو بھائی، جانتے ہیں؟ نذیر بھائی خاموش رہو، بٹ صاحب ہاں جی السلام ہاں جی، علیکم۔ یہ وہ کیا نام جی ہے، کالو وعلیکم بھائی بات السلام۔ کریں گے پہلے۔ نذیر صاحب اس کتاب کو بٹ جانتے ہیں آپ؟ صاحب کسی کو ولد الزنا کہنا، نذیر صاحب کنجری یہ کا اس بچہ کتاب کو کہنا جانتے اور ہیں؟ کنجری کے یار بچے بابا کہنا جانتے ہیں بٹ صاحب جانتے ان کو ہیں، ذرا نیچے اتاریے گا، بٹ کالو صاحب، صاحب یہ جی جی بٹ صاحب مجھے جی آپ جی بٹ اگر جی صاحب ایڈمن بنا دیں گے نا تو یہ کام میں خود کر لوں گا۔ شاہ جی ایک بٹ سیکنڈ، شاہ صاحب جی یہ ایک تو سیکنڈ، نذیر صاحب اس بتائیں، بٹ کتاب صاحب کو جانتے ہیں؟ بٹ صاحب کسی کو کنجری کا بچہ کہنا گالی ہے یا نہیں؟ بٹ صاحب جی بٹ جی جی صاحب اس کالو ہاں آفس والے کو بٹ اتارو صاحب میں نیچے نے تو یار، آپ سے پوچھا کسی کو کنجری کا بچہ کہنا گالی ہے یا نہیں؟ ابھی تمہاری کتاب پڑھ کے وہ تمہیں بتاتے ہیں نا کہ بٹ تم صاحب کیا ہو، موجود ہے؟ ویٹ بٹ کرو، تم صاحب، نیچے بیٹھو۔ بٹ صاحب جی 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 اتار آپ دیا میں نے۔ مجھے ایڈمن بنا دیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو، نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ایسی کیا بات ہے، مناسب والی کیا بات ہے، اللہ ہاں معاف بنا کرے دیں گے ایسا تو کچھ۔ میں پھر خود کر لوں گا ہینڈل۔ اچھا جی نذیر جی صاحب سے ٹھیک، پوچھنا تھا، نذیر صاحب یہ کتاب کو جانتے ہیں آپ؟ جی جی مفتی صاحب جانتے ہیں جانتے ہیں، یہ کس کی ہے یہ کتاب؟ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ مسیح موعود سے مراد کون؟
वक्त के इमाम हकम मौदल इमाम नाम मेहदी उनका क्या था नाम? तो वो हजरत मिर्जा मिर्जा गुलाम ज़ैलमी। अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम। अच्छा, तो ये मुफ्ती साहब सफा नंबर यहाँ पर मैं एक जाता हूँ 97 है आपकी सफा। आपकी आईडी नहीं शो हो रही मुफ्ती साहब इधर ये मुफ्ती साहब मॉडरेट वो बना है। कायलू भाई को करते ना, वो अच्छे इल्म जी वाले जी, बंदे आपसे बात ये करते हैं। इन्होंने एक सच्चा खुदा परस्त बनने का तरीका बताया है, ये सफा 97 के ऊपर। ये हाँ जी, नजर हाँ आ जी, रहा क्या है? है ये? मुझे अभी नहीं, इधर सही नहीं दिखाया, आप पढ़ें क्या लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सच्चा खुदा परस्त कहते हैं, मिर्जा साहब कहते हैं सच्चे खुदा परस्त बन जाओ। जी वो जी जी, सच्चा ठीक है। खुदा परस्त बनने का वो तरीका जो है ना, कादियानियों हाँ को उन्होंने ये बताया, अपने मुरीदों को, मर्जियों को ये बताया। कहते हैं कि मुफ्ती साहब अगर आप अहमदी कह दें तो अच्छी बात है, नहीं नहीं, हमें मैं अच्छा नहीं क्यों लगेगा। कह दूं, अच्छी क्यों बात है? तो अहमदी तो इस्लाम मैं का हूँ हुक्म है ना कि एक भाई, दफा पता अहमदी है तो क्या, मैं हूँ ना, मैं हूँ सुने अहमदी। सुने, एक दफा मैं आपको बताता हूँ वाकया। हुजूर आ- सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अच्छा बात यहूदी सुने आया। जरा, सुने, अहमदी सुने मैं ना, हूँ, आप लोग तो कादियानी है ना, आपको हमने कादियानी कहना। अच्छा, नहीं यहाँ पे नहीं, लिखा है जी, मिर्जा मुफ्ती साहब साहब अब हम कादियानियों को, अहमदी हैं, मर्जियों मैं को तो ये मशवरा कादियान में दे रहे पैदा हैं नहीं हुआ ना, मैं कि तो सच्चे खुदा परस्त बनो। सुन भी लेती होती हैं, सा भी लेती हैं कि नहीं लेते? कहती हैं जी, एक कतूरा यानी कुत्ती का बच्चा अस्तगफिरुल्लाह ये बनो। अस्तगफिरुल्लाह। सच्चे खुदा परस्त बनने का तरीका, ये हाईलाइट इबारत यहाँ पे नजर आ जाएगी। तोबा जी जी तोबा, अपनी किताबों सच्चा को नहीं खुदा परस्त मानेंगे बनने का यार। तरीका यह है कि कतूरा बनो। कतूरे से मुराद, ये कतूरा लिखा हुआ है, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह। कतूरा ये लिखा है, कतूरा ये, जी जी और कुत्ती का बच्चा ये लिखा हुआ। और इसको तुम नबी अस्तगफिरुल्लाह। कहते हो। वो कहते हैं दुनिया का हर सब कादियानी पढ़े ना, जो ये बात कतूरा क्या यानी है। कुत्ती का बच्चा नहीं है, वो सच्चा खुदा परस्त नहीं है। वो मुफ्ती पहले साहब मुझे अब आप इबारत बताएं, पढ़े आप ना, सच्चे खुदा परस्त हैं कि नहीं? आप ये इबारत पढ़े ना मुफ्ती साहब, एक लफ्ज अरे आपने वो उसमें पढ़ता हूँ, सुना है। आप मुझे नहीं बताएं तो, प्लीज, आप सच्चे खुदा रमजान में परस्त पढ़ हैं कि लेंगे, नहीं? रमजान में झूठ ना बोले ना भाई मुफ्ती चलो साहब ठीक प्लीज। हो गया, मैं झूठ हाँ, बोल रहा हूँ। आप रमजान सच्चे खुदा रमजान परस्त में हैं झूठ कि नहीं? छोड़ दो। पहले ये बताएं। नहीं नहीं, वो अपना लिखा हुआ नजीर साहब कुत्ती का लफ्ज लिखा हुआ, पूरा पढ़े ना, पूरा तो यार पैराया पूरा ही पढ़ेंगे, पढ़ क्या लेता बात। हूँ, किताब आपकी, मुफ्ती आप पढ़ साहब लें, आप पढ़ लें। नहीं नहीं, मुझे मुफ्ती बताएं, साहब आप सच्चे खुदा परस्त आप हैं कि नहीं? रोजे के साथ मुफ्ती साहब झूठ बोलते हैं यार ना, आप बताए देखेंगे तो, ना छोड़े, मैं मुफ्ती झूठ साहब बोल रहा प्लीज, हूँ। सच्चे रोजों खुदा में परस्त झूठ आप ना हैं बोले, कि नहीं? शैतान को बंद कर दे, रोजों को शैतान वजह को क्यों बंद नहीं बंद कर दूं? मिर्जे की किताब नहीं की नहीं, पढ़ी है, ये तो देखें बंद कर दूं? रमजान के बाद झूठ बोल लेना ना, पहले भी चलो बोला है सही है, तो बात रमजान बात बोल करते लेते। हैं अभी प्लीज, तो नबी मैंने रमजान वाली ये तरफ ना जो बोलना झूठ प्लीज। बोले थे, जो ये झूठ मुफ्ती बोले थे, साहब तो उसका रमजान जवाब में आपने झूठ दिया ना कोई बोले नहीं है, ना। हैं? मुझे अच्छा बात को लगेगा फिर कि मुफ्ती इस्लाम का मुफ्ती, खत्म नबूवत का मुफ्ती अगर रमजान में झूठ ना बोले तो हाँ फिर यार, अच्छी नहीं नहीं वो झूठ झूठ जो नहीं मैंने बोल बोल रहे तो यार, रहा वो हूँ, आपकी नहीं किताबों नहीं, से बस पढ़ उसका के जवाब कौन मैं देगा? ये आपसे झूठ क्यों बोल रहा मैं हूँ? मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुबारक महीना है, इसमें झूठ ना बोलें तो प्लीज। यार मैं जो झूठ बोल रहा हूँ उसका कोई जवाब तो दे के नहीं तो देना। आप वो पूरा पैराया पढ़े ना, वो क्या मसला क्या है, कुत्ती और कतूरा क्यों कहा है, किस मुफ्ती को कहा हाँ है, किसी को क्या हुआ वो है? इस वजह से कह के सच्चे खुदा परस्त बनना है, तो उसका कैसे, नाम, ये तो उसका बात आपने नहीं। जवाब दिया, पहले ही बार से इतनी ये पेश की मैंने, मुफ्ती इसका साहब भी कोई जवाब नहीं। ठीक इतनी है जी, अब अक्लमंदी वाली बात तो आप भी नहीं इसकी तरफ करते आ हैं ना गए। मुफ्ती साहब, प्लीज आज रमजान में तो सच बोलना शुरू कर और दें। यार चलो, बताएं तो, अच्छा बताएं, साल में क्या एक ये महीना मैंने होता है, झूठ रमजान बोला था? मुबारक हो। क्या ये झूठ बोला था कि मिर्जा साहब अपने नाम मानने वाले को कहते हैं कि तुम वलदुल हराम हो, हरामी हो, तुम्हारी हाँ औरतें नजीर कुत्तों भाई, से है बढ़ती कि हैं? कौन सी पहला हवाला झूठ क्या ये है बोला था झूठ का? मैंने, जो ऐसे ही है? भाई ये झूठ बोला है जो ना? हवाला लगाओगे पढ़ोगे फिर मजा आएगा, ऐसे नहीं होता हवाला पूरा सफा पढ़ो, बात वो तो जो यहाँ से शुरू हुई। हवाला तुम्हें सबसे सारा पहली पता बात है। ये पेश की मैंने, उसके बाद ये पेश की, नहीं उसके नहीं बाद नहीं, ये एक पेश। लफ्ज उसमें से एक लफ्ज आपने पेश मुफ्ती किया, लफ्ज साहब। एक लफ्ज चलो लिखा है चलो आपने जी, लफ्ज। शुरू से ही बात ये शुरू यहूद करते नसारा हैं। ऐसे मैं करते किताब थे, उठा यहूद लूं, मैं नसारा किताब ऐसे उठा करते लूं। थे, जिल्द यहूद 9, नसारा एक लफ्ज जिल्द दिखाते 9 और थे। 14, एक मिनट है, जिल्द 9 हाँ और जी 14। सही, रमजान में सच बोले, अल्लाह का वास्ता नहीं नहीं रमजान में नहीं सच बोले नहीं, मुफ्ती झूठ साहब तो प्लीज। बोल नहीं है ना यार, झूठ पूरा साल आप लोग ये झूठ देखिए, ये बोलते हैं, आपकी एक है। रमजान के महीने में तो सच चले बोलते हैं। छोड़ दें यार, पूरा सफाई पढ़ता आप हूं। ये देखें देखिए, नजीर आपकी है। साहब किताब ले आए, आप देखें जरा प्लीज। बताएं हाँ तो जी, हाँ, नजीर साहब, देखिए, ये आपकी किताब। है कि मेरी है? जी जी, हाँ, हमारी किताब है जी, हमारी। आपकी है। इसके सफा यानी जिल्द 9 है, सफा 31 के ऊपर मुझे जाना है। हाँ, फिर एक लफ्ज पढ़ेंगे मुफ्ती साहब, आप एक पूरा लफ्ज पूरा पढ़ें। पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। हाँ पूरा, हम वो कह रहे हैं पूरा जो पढ़ेंगे, बात आप हो रही सुने होती है ना प्लीज पूरी यार। पढ़ें, फिर हाँ, पता पूरी चलता पूरी है। पूरी इबारत पढ़ते। चलें, जज़ाकल्लाह। अच्छा, पहले मेरा दावा सुन लें। दावा मेरा ये, उस मेरे दावे को आपने गलत साबित करना है, ऐसा ही है? जी जी ठीक है। मेरा दावा ये है कि देखें, मिर्जा कादियानी जब किसी को तबलीग करता था ना, तो तबलीग करने का उसका तरीका ये होता था कि वो गालियां मुफ्ती साहब थोड़ा रिस्पेक्ट से नाम तो ले लेना, हमारे हमारे बुजुर्ग ले हैं। रहा हूँ, और क्या मैं हमारे- आपको गाली निकाल रहा हूँ यार? कमाल होगी यार।
मेरा थोड़े आप मुफ्ती हैं, अदब आपको आता है कि वो नहीं आता? कौन सा अदब कैसे कौन सा यार, हम तो उसको जूते की नोक पे रखते हैं। अदब किस चीज का करें मिर्जे कादियानी का? फिर वो जो देखें आप, मोहम्मद देखें बनने का आप दावा अदब करता है, जो आप कहता है मैं मुफ्ती मोहम्मद बनते में हैं, हूँ, आपको उसका मदद आपको अदब करें। का नहीं पता ना मुफ्ती जो साहब, कहता आपको है अदब का मोहम्मद नहीं मैं पता। हूँ, वो हाँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का जो कुत्ता है ना, उसके मूत के बराबर नहीं है मिर्जा कादियानी। उसका अदब करें हम। अब रमजान में देखा अपनी जबान गंदी कर वो रहे हैं मेरी आप। गद्दी क्या, मैंने अब जो देखें, किताब लिखी है वो ये पूरा देखें, साल जबान गंदी पूरी रहती है पूरी और फिर किताब रमजान में लिख भी दी है गंदी करते हैं कादियानी आप। कलमा, जिसके अंदर मुफ्ती साहब ये प्लीज, हमने खत्म हवाले दिए नबूवत तुम वालों लोगों की किताबों रमजान में के, गंदी जबान असल ना करें स्कैन आप। लगाए हैं। मिर्जा कादियानी कहता है मोहम्मद मैं हूँ, ये मुफ्ती कुरान साहब मेरे आप ऊपर नाजल हुआ है, असल शरीयत को मुकम्मल मैंने आके किया है। मोहम्मद हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये थे वो झूठ बोल रहे शरीयत हैं, को ये अधूरा झूठ बोल रहे हैं, छोड़ के दुनिया से चले गए थे। झूठ बोल रहे हैं, बताएं, झूठ बोल रहे हैं मुफ्ती अब साहब, इस पे झूठ बात शुरू बोल कर रहे लूं, हैं। इस पे शुरू ये कर दूं। अल्लाह के लिए रमजान मैं में झूठ किताबें ना खोल खोल बोलिए के सामने रख रहा हूँ। अब अजी, एक लफ्ज पढ़ते हैं आप, एक लफ्ज और पढ़ते हैं ना मुफ्ती साहब। ये किताब आपका माइंड रोस्टर का यानी मुरब्बी, जब ये मैं मुफ्ती किताब साहब लिख आप रहा था वो दोबारा कह रहा कोर्स था करें, मुफ्ती ये किताब सबसे मुफ्ती पहले तूने मुझे भेजनी है, जब मुफ्ती तू साहब मेरे आप पास दोबारा भेजेगा तो मैं कोर्स, इसका जवाब दूंगा। मुफ्ती का कोर्स किताब को दोबारा 10 करें साल आप। से भी ज्यादा करसा हो गया राउंड बोर्ड। नहीं सुने मुफ्ती साहब, और आप सुन झूठ ले, बोलते हैं, बीच में आप बोले झूठ जा रहे बोलते हैं हैं, चुप दोबारा है। कोर्स करें आप, एक दोबारा ये मिनट कोर्स। किताब मुफ्ती पीडीएफ के साहब, अंदर मौजूद, सबसे पहले मुफ्ती अल्लाह साहब, की कसम माइंड रोस्टर मीर सलीम को ये किताब मैंने सेंड की थी, इसकी पीडीएफ मुफ्ती साहब, आज एक सतर का जवाब तक नहीं है आप लोगों के पास, एक सतर तक का। मुफ्ती साहब एक मिनट झूठ देंगे बोलते प्लीज, हैं ना एक आप, एक मिनट लफ्ज सिर्फ। बता के मुफ्ती झूठ साहब बोलते हैं आप। नहायत माजरत के साथ एक मिनट ना, अपना नसीर साहब एक जी बात जी का जवाब देंगे मेरी? हाँ जी जी, हुक्म करें, हुक्म करें। देखें नसीर साहब, गुजारिश ये है कि मुफ्ती साहब ने 10 साल से एक चैलेंज किया है, हाँ जी, तो 10 साल में आपकी जमात में से किसी बंदे ने जवाब नहीं दिया, क्या ये ज्यादती नहीं है? ये बहुत बड़ी जाती है। तो मुफ्ती साहब इतना इल्म रखते हैं कि हमारी जमात के पास इतना इल्म है नहीं ना जी। नहीं नहीं, बात वो नहीं इनका कर रहा, इल्म बहुत ज्यादा है। आप मजाक ना करें ना, आप बात का नहीं जवाब सीरियस दें मैं कह रहा दलील हूँ, ये के गालियां इतनी अच्छी देते हैं, प्यार से देते हैं और इतने यार, तरीके से देते हैं। बात ये मुफ्ती गाली बने की नहीं हो एक्सपर्ट रही। इसीलिए हैं, इनका देखिए जवाब मेरी कौन बात दे सुने सकता है? यार, जी, बात सुने नजीर साहब, बात सुने, बात सुन ले प्लीज। गालियां मिर्जा साहब ने जो दी हैं उस पे आप क्यों नहीं गौर करते? उन्होंने 10 साल से चैलेंज किया है, 10 साल थोड़ा अरसा नहीं होता, और नहीं आपकी बहुत जमात लंबा, ये में बड़े भागे बड़े हुए हैं, तमाम ब्रांडों से ये भागे हुए हैं। अहमदी ब्रांडों पर ये ठहरते नहीं, एक मिनट नहीं ठहरते। हाँ, इन्हें पता चल जाएगा। चलो मुफ्ती अभी ले साहब जाते अपनी हैं कोई अहमदी रिकॉर्डिंग ब्रांड। दिखाएं जो अहमदी ब्रांडों पर इन्होंने उनको शिकस्त दी है। इन्होंने रिकॉर्ड की लेकिन होगी, मुझे चलो दें। मुझे भाई आप सिर्फ मिर्जे इस के बात, कैरेक्टर पर क्यों मीर नहीं सलीम बात साहब के करते? साथ मिर्जा या नादिर कौन भाई के है? साथ या किसी और के साथ इनकी कोई वो हुई है, बहस हुई है, वो जरा ये चलाएं इधर के हमने शिकस्त दी है उनको। चलें जी, पता नहीं, चल जाएगा। ओए आपके नहीं, नहीं। मुफ्ती मुबशर कालू से हुई है, जाके मेरा यूट्यूब चैनल खत्म नबूवत टाइम देखो। लगाएं ना। मेरे तुम्हारे सवाल का खलीफा जवाब मिर्जा बस मसरूर के सुनाएं साथ ना, मेरी मुफ्ती गुफ्तगू हुई साहब, है। सुनाएं तुम्हारे नहीं, मिशनरी झूठ ना मुरब्बी बोलें। जो है ना वो अंसर रजा के साथ वो दौड़ा हुआ है मुझसे मुनाजरे के अंदर। मेरी ओए बात का तुम्हें जवाब पता ही नहीं कौन नहीं है दिया हमारी आपने। तारीख का। ओए अहमदिया रेडियो इधर लगाएं के अंदर ना, हमने भी इधर कैनेडा लगाएं। के ऐसे रेडियो चलाया था, 2 साल तक चला था। इधर लगाएं एक ना, दिन जो अंसर आपने रजा शिकस्त दी बैठता है, था, इधर एक लगाएं दिन ना। मैं बैठता था, जो और चैलेंज आपने उसी किया दिन मुफ्ती साहब लगाएं ना, उसी प्लीज दिन लगाएं। उसकी मंजी ठोक देते थे हम। मुफ्ती हाँ, साहब प्लीज दौड़ा लगाएं हुआ है इधर। वो, हमसे दौड़ा हुआ है, भागा हुआ है। तुम आप लोगों के लगाएं सारे इधर, मुरब्बी इधर। भागे हुए हैं मुबशर शाह से। इधर लगाएं ना आप, वो लगाएं जो आपने शिकस्त दी है उनको, रिकॉर्डिंग लगाएं जरा, पता कौन चल सी जाएगा। किस्त? खत्म जो उनके वो साथ मेरा आप 10 पूरा साल चैनल, मेरे चैनल जाके मुफ्ती देखो, साहब। उसका एक एक वीडियो जो है ना किस्त ए वाली खत्म है, नबूवत जाओ वालों, जाके रमजान देखो। में झूठ ना बोलो। खत्म नबूवत वालों, चलो रमजान में फिर प्लीज ये झूठ एक ना लफ्ज बोलो, पकड़ा है जी, रमजान में। झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो रमजान यार। बहुत मुबारक महीना है, इसमें तो बस रुक जाओ। 11 महीने यार, झूठ बोलो, झूठ बाबर ना साहब, बोलो बेशक। नासिर आप साहब, एक्स कादियानी, आप इनकी नफ्सियात ज्यादा समझते हैं, तो नहीं, नहीं, प्लीज। डिबेट करवाएं किसी मौजूद मुफ्ती साहब प्लीज, प्लीज ये मुफ्ती सिर्फ साहब एक झूठ लफ्ज इन्होंने पकड़ा, झूठ ना बोले, डिबेट झूठ करवाएं तौबा मेरी से इनके तौबा कर साथ, लें, झूठ अभी से करवाएं। तौबा कर लें, झूठ से ये तौबा गौर, कर ये लें। मैदान ए मुफ्तियान खत्म किसी नबूवत झूठ मौजू से तौबा पर कर लें। मुझे दुनिया का हर मौजू कबूल है। नज़ीर भाई अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट जी। बाबर बाट साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। अपना कालू साहब एक मिनट बट बात साहब सुने जरा मैंने इस प्लीज। बंदे से बात नहीं करनी, ये हेलो। गुस्ताख है, भाग इसको गया है ना? यहाँ तो नीचे उतार दें, यहाँ मैं चला जाऊंगा। व्हाट्सएप भज गया नहीं, जेड़ा नहीं। कहंडा है मेरे को बट साहब ये बंदा गुस्ताख है, मैंने इससे बात नहीं करनी। आपने मुझे ठीक भी है, नहीं ठीक। अभी तक एडमिन बनाया, नहीं तो मैं इसको खुद रिमूव करता। नहीं, मैंने समझा कि शायद आराम से बात करें, लेकिन वो नहीं नहीं, समझते मैंने तो इससे फिर- करनी ही नहीं है बात, ये आराम से करे, ये मेरे ऊपर फूलों की निछावर करे, मैंने इससे बात करनी ही नहीं है।
मुफ्ती साहब 10 साल का ये चैलेंज तो आपको बता गुस्ताख देता आदमी है। है, ये शातिम गुस्ताख रसूल नहीं। है। हाँ जी, वो इससे बात करनी नहीं है मैंने। हाँ जी, जी जो ठीक हो आपको गया देखे मुफ्ती जो साहब। दलील समझ नहीं आती आप उसको गुस्ताख करार दे देते हैं। ये बाबर लोग भट्ट आपने साहब दलील- कोई इस नजीर कादियानी मुरब्बी से कोई डिबेट करवाएं किसी मौजू के ऊपर, भाई वो झूठ टाइम ना फिक्स बोले। करें, 1 मिनट या 2 मिनट ये बात करें, फिर मैं करूं। इस तरीके से शूटर भाई एक आए हैं, बेहतरीन ये किस्म की बोले कोई कि ये डिबेट करवाएं। शार्प शूटर भाई इधर मुफ्ती साहब कहें कि झूठ ना बोले, रमजान में झूठ ना बोले प्लीज, इनके में रिक्वेस्ट कर देंगे आप। मुफ्ती साहब के हाथ में मिर्जा साहब के 200 झूठ पकड़े हुए हैं भाईजान। नहीं वो देखा अभी एक लफ्ज बताते हैं ना, एक लफ्ज बता के ना नहीं, वो नहीं, मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ इस किताब का। नहीं कब तक जवाब आप देंगे? वो ये पढ़कर सुनाए ना, इन्होंने कहा मैंने शिकायत नहीं, दी है सबको, वो आप पढ़ी खुद हुई- पढ़ें। वो यार मुखत्मे नबूवत टाइम भरा हुआ है चैनल, आप कोई नहीं इधर भी सुना दिए करें ना, इधर सुनाए जरा, ये अपनी शिकायत मुनाजरा जरा कैसे, सुनाए। नजीर भाई इतना लंबा मुनाजरा ये कैसे सुना सकते हैं? आप जाके वहाँ पे खुद सुन लें। नहीं वो कोई आधे 15 मिनट की बात आधे घंटे की होती है, इधर सुना देना प्लीज। नजीर भाई आपका हर बंदा मुफ्ती साहब से भागा हुआ है, इनको ऊपर नहीं लेता, ठीक है यार और ये रमजान में क्यों आप भी शार्प शूटर भाई ये झूठ बोल रहे हैं यार रमजान में मैं ऐसा क्या ना झूठ करना। बोल रहा हूँ? मुझे आप बताएं, आप तो बताएं। ये लोग जो भागे हुए हैं उधर कोई, मैं तो इनको देखता हूँ उधर मुफ्ती अच्छा। जब भी कोई जाता है कोई नहीं ठहरता, एक मुफ्ती 2 मिनट 3 मिनट ठहरता है बस नादिर यार भाई के शार्प पास। शूटर कोई डिबेट करवाएं यार किसी मौजू के मैं ऊपर, कराता हूँ मुफ्ती साहब, मैं कराता हूँ। एक कोई मिनट, एक फिक्स मिनट, करें कोई डिबेट। एक नहीं मिनट, नहीं शार्प शूटर साहब देखें उधर ब्राड पे मैं देख रहा हूँ 3 मिनट ठहरते हैं, मुफ्ती साहब आते हैं 3 मिनट सिर्फ बात करते हैं, भाग मुफ्ती जाते हैं। साहब को वो नीचे उतार देते हैं, एक बंदा इनसे बात नहीं मैंने 10-15 मुफ्ती पाकिस्तान के देखे हैं, बड़े बड़े जैद मुफ्ती, वो आए हैं 2 मिनट 3 मिनट बात की और भाग गए। वो अल्लाह का वास्ते, आप मुफ्ती साहब को कितने अरसे से जानते हैं? मुझे ये बताएं। मैं 10 साल से जानता हूँ इनको। मैं मुफ्ती साहब को तकरीबन 13-14 साल हो गए जानता हूँ। आज तक यार यूट्यूब भरी हुई है, कोई देखो जुबानी बात तो नहीं कर रहे नजीर भाई। आप देखें आप मुझे लग रहा है मुफ्ती साहब झूठ बोल, रमजान में झूठ बोलते हैं यार, मुफ्ती आपको लग रहा है ना, लेकिन एक चीज जिसका एक मतलब गवाह मौजूद है, गवाही आप यूट्यूब पे जाके इनके चैनल पे जाके चेक कर लें। मैंने 10 साल से इनको सुन रहा हूँ ना शापर भाई, ये जो है ना शूटर भाई, ये जो है ना वो मैंने इनके सुने हैं सारे यार मुनाज़रे में, नबील जवाब भाई देते कोई करो ना यार, डिबेट शुरू कराओ ना यार, गप्पां दे विच वक्त लंघ जाना है। हैं। नहीं इनको जोर से कोई डिबेट आई डिबेट है शुरू भाई। कराओ, छड्डो तुसी ये गो है मैदान। मुफ्ती साहब मैं तो रिक्वेस्ट करने आया था कि झूठ ना बोले, बस डिबेट नहीं करनी, आप झूठ रमजान में रुक आपने जाएं, कोई बात बोल रहे यार, किसी भी मौके, किसी भी मौके। रमजान में रुक जाएं प्लीज, रमजान में झूठ ना बोले, अल्लाह का वास्ता इस्लाम पर चलें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलें, झूठ ना बोलें बस। अच्छा नजीर भाई, ये- मैं एक बात आपसे एक ये बात आसिफ गोंदल साहब है, ये जो इनको ले लें मुफ्ती साहब। साहब के हाथ में सुने ना मुफ्ती ये जो साहब, ये मुफ्ती साहब आसिफ के- गोंदल साहब हैं, कोई इनको ले लें। जी ले बिल्कुल, लेकिन एक बंदे से पहले डिबेट फिक्स कर ले ना। अभी बड़ साहब ना और किसी को लें, नजीर साहब से अभी हम डिबेट करेंगे किसी एक मौजू के ऊपर। नहीं मौजू पे नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट करने आया था मुफ्ती देखिए ना, साहब मौजू झूठ पे ना नहीं बोलें। करनी इन्होंने। देखे मेरी शार्प बात शूटर सुनो। आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनटों में कट्टी कट्टा कड्डो। नजीर भाई, नजीर भाई जी जो आसिफ भाई, एक मिनट, ये आसिफ भाई हमारे मुसलमान भाई हैं। अच्छा नजीर साहब, ये जो इनके हाथ में किताब पकड़ी हुई है, जिसका ये कह रहे हैं कि मैंने 10 साल से चैलेंज किया, वो किसी ने जवाब नहीं दिया, क्या इस किताब का पहला सफा जो है उसी पे डिबेट कर ली जाए? नहीं कि इनकी मुफ्ती साहब की अपनी किताब कह रहे हैं। हाँ जी, नहीं मुफ्ती साहब को मैंने 10 साल से सुना है, किसी एक का जवाब नहीं दे सके हिंदी ब्रांडों पर। ये किताब तो इन्होंने कारोबार के लिए बनाई है ना, अपने खत्म वालों को बेचेंगे, पैसे कमाएंगे। ये और तो यार है मुझे तो फ्री में भेजी है ऑस्ट्रेलिया में, मुझे से तो नहीं, पैसे नहीं, लिए। एक मिनट ये कारोबार वाला धंधा, ये नहीं कुरान हदीस से बात करें, कुरान हदीस से बात, मुफ्ती की किताब से बात नहीं। मुफ्ती साहब ये जो शार्प शूटर साहब बार बार कह रहे हैं ना कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आप गुस्सा करें और इसको गाली शाली दें और ये कहे कि देखो जी नहीं मैं तो गाली अच्छा ओ यार अल्लाह का ये जो नाम भी ले, कह कोई रहा था। डिबेट कराओ यार, किसी मौजू पे अच्छा, कराओ यार। मुफ्ती साहब ने पहले जो मलफूजात मलफूजात दिखाए थे, मलफूजात दिखाए, उसमें कोई शानदार किस्म की डिबेट होनी चाहिए यार, कोई पता तो चले किसी ने कोई। मुफ्ती साहब ने कतूरा लफ्ज़ दिखाया था। यार इधर देखे चले सारे ही चुप हो जाओ, मैं नदीर साहब ने गल करना, ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਦਾ ਰੋਗ नहीं, किसी ने बस का रोग नहीं। नदीर साहब, दुनिया के किसी मौजू पर आप मुझसे डिबेट चले, मौजू आपका मुफ्ती साहब आपके पास मौजू दे, कोई मौजू दे, मेरे पास गालियों वाला इल्म, कोई एक मौजू दे दे, कोई एक मौजू दे दे।
मुफ्ती साहब आप गालियों के इल्म में बहुत आगे हैं। मैं अच्छा, तो बहुत मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ये पैनल के अंदर मौजूद हैं दोस्त, किससे बात करना चाहती हैं? नहीं, मैं आपसे करना चाहता हूँ, पर आप ये अहद अच्छा, करें रमजान होस्ट में कि मैं होस्ट पर गालियां नहीं आपको निकालूंगा, इत्मीनान फिर है, वो मैं बात गालियां नहीं देते, उनसे बात करेंगे। नहीं आप अहद करें कि अच्छा, अल्लाह से अहद करें। नवीद शार्प शूटर से करेंगे बात। नहीं नहीं, वो मैंने नजीर साहब आप आपसे किसी भाई से भी बंदा बात ना भी करें। आपका, मौजू भी आपका, नजीर बताएं तो साहब, सही किसी तरफ मैं आए तो मौलवी सही। साहब नजीर साहब, यार बकाया सारे चुप हो जाओ यार, मेहरबानी करो। मैं मुफ्ती साहब से नजीर साहब आप बात किसी से सारे भी बात ना करें। नजीर साहब आप नहीं किसी नहीं, से भी बात ना मैं करें। मुफ्ती साहब से बात करता हूँ, पर वो ये अहद करें रमजान में कि आइंदा जिंदगी में गालियां नहीं निकालेंगे। चले तौबा करें। जी, मैं अहद करता हूँ कि मैं आइंदा जिंदगी में कभी गाली नहीं दूंगा। जज़ा चलें, ये बात फिर करें अब आप देख सारे सुन रहे खत्म नबूवत वालों, अगर आज के बाद मुफ्ती साहब ने कहीं भी कितनी गाली निकाली तो ये लेकिन अपने आप मिर्जे से की किताबें पढ़ने की इजाजत है मुझे। हाँ जी बरो ये अपनी क्या ये जो है ना वो जो वो अच्छा, वो इजाजत है ना, मिर्जे की किताबें पढ़ने की तो इजाजत है ना। फिर देखें आप रिस्पेक्ट से भी बात नहीं करते ना मुफ्ती अच्छा साहब। फिर चल मुझे अच्छा यार, नहीं लगता मिर्जा आपसे। साहब कह लेता हूँ, मिर्जा साहब हाँ, की ये किताबें जज़ाक पढ़ने अल्लाह। की इजाजत है जी, मुझे जी, कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, है। बिल्कुल। अच्छा, जज़ाक ये अल्लाह। जो रूहानी खज़ाइन जिल्द 9 सफ़ा 31 के ऊपर मिर्जा साहब ने फरमाया है, हमारी हाँ फतह जी। का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हाँ। हराम बनने का शौक है और हलाल ज़्यादा नहीं। हाँ जी, अब ये मैंने गाली दी है कि मतलब सच पढ़ा है मैंने? अगर वो पढ़ा है आपने, पढ़े पूरा हवाला पढ़े, क्यों कह रहे हैं अच्छा, आप? क्यों पूरा कह रहे हैं? हवाला पढ़े। ये ले ये जी, भी पूरा कौन हवाला जिक्र अब क्या मैं हो रहा पढ़ने लगा हूँ, शुरू से ये सुनिएगा। जिक्र क्या हो रहा है? ये पढ़ अच्छा के पूरा सुनिए, ये जिक्र अब माइक पूरा तो म्यूट करे ना, चुप तो करे। हाँ तो ये मैं पढ़ने लगा हूँ। सफ़ा 31 का पहला लफ्ज है बल्कि। बल्कि बराबर सख्त दिल और दुश्मन इस्लाम रहा और मसीह को बराबर खुदा ही कहता रहा। फिर अगर हम इसी वक्त बिला तवक्कुफ 2000 रुपया ना दे तो हम पर लानत, और हम झूठे और हमारा इल्हाम झूठा। और अगर अब्दुल्ला आथम कसम ना खाए या कसम की सजा मियाद के अंदर ना देख ले तो हम सच्चे और हमारा इल्हाम सच्चा। फिर भी अगर कोई तहक्कुम से हमारी तकजीब करे और इस मियार की तरफ मुतवज्जे ना हो और नाहक सच्चाई पर पर्दा डालना चाहे तो बेशक वो वलदुल हलाल और नेक जात नहीं होगा। ये अब्दुल्ला आतम को मिर्जा साहब जो है ना गालियां निकाल रही हैं, ठीक है। अब वो ना पहले नाल ज्यादा उन भुगतनी पै जानी जे। पहले तो एक गाली थी, अब गालियों पे गालियां। अच्छा, ये पहली गाली आ नहीं, आप गई वो है। भाई मैं पढ़ रहा हूँ आगे, कोई ना बोले बीच में यार, क्यों बोल रहे हैं यार, कौन बोल रहा है? सुनते जाए। अच्छा जी, होगा ख्वाम ख्वाह हक से रू गर्दान होता है और अपनी शैतनत से, ये दूसरी गाली आ गई है, शैतनत से कोशिश करता है कि सच्चे झूठे हो जाएं। अब इससे ज्यादा साफ और कौन फैसला होगा कि हम 2 कलमों के मोल में खुद अमृतसर में जाकर 2000 रुपये देते हैं। मिस्टर अब्दुल्ला आथम अगर दर हकीकत मुझे काज़िब समझता है और जानता है कि एक जरा भी इसने इस्लामी अजमत की तरफ रजू नहीं किया तो हम जरूर बिला तवक्कुफ इबारत मज़कूरा बाला के मुआफ़क इकरार कर देगा, क्योंकि अब तो वो अपने तजर्बे से जान चुका कि मैं झूठा हूँ और मसीह की हिफाजत को इसने मुशाहदा कर लिया। फिर इस मुकाबला से इसको क्या खौफ है? क्या पहले 15 महीनों में मसीह जिंदा था? ये देखें, ये मिर्जे कादियानी ने उस वक्त गालियां निकालनी थी जब मिर्जा कादियानी को अब्दुल्ला आथम ने शिकस्त दी थी, और मिर्जा कादियानी ने फिर आगे कहा ये 15 महीनों के अंदर मर जाएगा। तो मिर्जा कोई नहीं, अब्दुल्ला आथम को नहीं सी मरिया। हाँ जी, क्या पहले 15 महीनों में मसीह जिंदा था और मिस्टर अब्दुल्ला आथम की हिफाजत कर सकता था और अब मर गया है इसलिए नहीं कर सकता? जबकि ईसाइयों ने अपने इश्तिहार में ये कहकर ऐलान दिया है कि खुदावंद मसीह ने मिस्टर अब्दुल्ला आथम की जान बचाई, तो फिर अब भी खुदावंद मसीह जान बचाएगा। कोई वजह मालूम नहीं होती कि अब मसीह के खुदावंद कादर होने की निस्बत मिस्टर अब्दुल्ला आथम को कुछ शक और तरद्दुद पैदा हो जाए, और पहले वो शक ना हो बल्कि अब तो बहुत यकीन चाहिए, क्योंकि इसके खुदावंद और कुदरत का तजर्बा हो चुका, नीज हमारे झूठ का तजर्बा। लेकिन याद रखो कि मिस्टर अब्दुल्ला आथम अपने दिल में खूब जानता है कि ये बात सब झूठ है और इसके मसीह ने बचाया जो खुद मर चुका, वो किसको बचा सकता है? अब ये देखें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को
की तौहीन। आप कह रहे थे मिर्जा कादियानी की अदब 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 से बात करो। वो मिर्जा कादियानी मसीह का नाम इतनी बेअदबी से लेता है, अल्लाह के सच्चे नबी को इतनी वो तजलील करता है, इनकी तहकीर करता है और इतने जिल्लत में अल्फाज से याद करता है। मिर्जे का नाम अदब 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 अदब। अच्छा जी आगे जी, बचा सकता है। और जो मर गया वो कादर क्यों कर, और खुदावंद कैसा, बल्कि सच तो ये है कि सच्चे और कामिल खुदा के खौफ ने इसको बचाया। अगर अब नादान ईसाइयों के तहरीक से बेबाक हो जाएगा तो फिर इसके कामिल खुदा की तरफ से बेबाकी का मजा चखेगा। गर्द अब हमने फैसला कि साफ साफ राह बता दी और झूठे सच्चे के लिए एक म्यार पेश कर दिया। ये म्यार है मिर्जे का, हाँ ये गालियां म्यार है। वो कह रहे मैंने म्यार पेश कर दिया। अब जो शख्स इस साफ फैसले के बरखिलाफ शरारत और अनाद की राह से बकवास करे, ये देखें अब बकवास वो ये तरीका है बात करने का। अब्दुल्ला आथम को जो ईसाइयों का पेशवा था उस टाइम, उसको वो कितने गलत जुबानी से वो मिर्जा कादियानी उसको पुकार रहे हैं जी। राह से बकवास करेगा और अपनी शरारत से बार बार कहेगा। ये देखे गाली पे गाली मिर्जा कादियानी दे रहे कि ईसाइयों की फतह हुई और कुछ शर्म और हया को काम नहीं लाएगा। ये देखें हाँ जी लाएगा, और बगैर इसके के जो हमारे इस फैसला का इंसाफ की रूह से जवाब देगा, इनकार और जुबान दराजी से बाज नहीं आएगा। अब ये वो इबारत आ गई है, और हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और हलाल ज़ादा नहीं। बस हलाल ज़ादे बनने के लिए वाजिब ये था कि अगर वो मुझे झूठा जानता है, और यहाँ पे पूरा सफा खत्म हो गया। अब करो, अब ये कितनी चीजें आ गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीजों के ऊपर मैंने निशान लगा दिए। इस पूरे सफे के अंदर 10 चीजों के दो जवाब। चलो एक मिनट मुफ्ती साहब, ना अपना नसीर साहब आप माइक खोलें और आप बताएं कि ये जो पूरी तहरीर में मिर्ज़ा साहब को किसने हक दिया, अल्लाह नंगी उन्होंने गाली निकाली हैं, किस बेस पे निकाली हैं, अब आपने ये जवाब देना है प्लीज़। जी जी ये इसमें देखें, जो अब्दुल आथम कौन था, वो गुस्ताख रसूल था, गुस्ताखियाँ करता था आम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस्लाम के बारे में। तो आप उनको कहें कि आप उनको दुआएं देनी चाहिए और आप उनकी हमायत करें। अब्दुल आथम की आप हमायत कर रहे हैं, उसको उसके वो कह रहे हैं कि उनको गुस्ताखी कर रहे हो। वो तो गुस्ताख रसूल था, उसकी पढ़े ना हिस्ट्री। आप हमें सिर्फ ये बताएं कि जिस बंदे ने, आप हमें ये बताएं कि जिस बंदे ने नबूवत का दावा किया वो गालियां दे रहा है, क्या देना चाहिए? नहीं मुझे ये बताएं कि कुरान करीम में जितने भी अंबिया गुजरे हैं, किसी अंबिया ने गाली दी हो? बताएं। नहीं, कुरान करीम ने ऐसे लोगों को गाली दी है कि नहीं दी है जो नबियों के मुखालिफ होते हैं और उन पर तौहीन के इल्जाम लगाते हैं? मैं नबियों की बात कर रहा हूं, किसी नबी ने किसी ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ गई कि जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ टॉमी। अब आप ये सफाइयां देर पहले आप कह रहे थे कि जी अब मिर्जा साहब को जो लोग झूठा समझते हैं वो अगर गाली देते हैं तो आप कहते हैं कि जी वो झूठे को नहीं, बात सुने, अब्दुल आथम गुस्ताख रसूल था, आप उसकी हमायत कर रहे हो। मेहरबानी करें, अभी कोई बीच में ना बोले। आसफ साहब मेहरबानी करें, बात गडमड हो जाएगी, मेहरबानी करें, माइक म्यूट करें। मुफ्ती साहब एक मिनट चुप हो जाए, आपने पढ़ा, मैं खामोश। अब्दुल आथम कौन था यार? अब्दुल आथम कौन था भाई? गुस्ताख रसूल था, उसकी हमायत को डिबेट कराओ, 1 to 1 दी डिबेट कराओ। रसूल की हमायत करते हो, दूसरे सारे बंदों को भले आप नीचे उतार दें। आप गम खाते हो अब्दुल आथम का, आप होस्ट हैं, मेहरबानी करें अपनी होस्टिंग के कुछ। जी नसीर साहब एक मिनट यार, एक मिनट में बात अब्दुल आथम गुस्ताख रसूल था, उसको गाली। एक मिनट यार, बात सुने मेरी, प्लीज़ मेरी बात सुने। ये जितने दोस्त बैठे हैं ना, मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुफ्ती साहब और नसीर साहब ये दोनों बात करेंगे, ना मैं बोलूँगा ना आप लोगों में से कोई बोलेगा। आपकी मेहरबानी है। मुझे मॉडरेटर बना दें यार, वो मुझसे नहीं बना जाता, मैंने तो पहले भी कहा, मुफ्ती साहब को भी बनाया तो सेटिंग वो आते ही नहीं, नाम ही नहीं आ रहे। एक मिनट यार, मैं देखता हूँ इसमें आपका नाम आता है। सेटिंग में जाएं, मैं बताता हूँ। सेटिंग में जाएं। ये मैंने नीचे जी लिखा है, कमेंट किया जी लिख के। नहीं मेरे नाम के ऊपर क्लिक करें आप। हाँ, इस पे इससे भी बन जाता है।
मुझे ये बताएं, मैं मॉडरेटर पे आ गया हूँ तो यहाँ तो सिर्फ 4 बंदे हैं। आप नहीं नहीं, मेरे नाम ये जो मैंने कमेंट किया उस पे क्लिक करें। नाम अच्छा पे क्लिक करें, वहां से आ जाएगा ऐड मॉडरेटर। अच्छा ये मुफ्ती वहां साहब पे ने आ जाता रमजान है में ऐड 2 गुनाह मॉडरेटर। कर दिए, 2 गुनाह। मुफ्ती साहब ने 2 गुनाह रमजान में कमा लिए, एक झूठ बोला, एक अब्दुल आथम गुस्ताख रसूल की हमायत कर रहे हैं, ये 2 गुनाह और मुफ्ती यार साहब ने। अच्छा नजीर साहब मैनेजमेंट नजीर कर साहब, लेने दे, एक थोड़ी सी मासूमाना मेहरबानी सवाल है। करें जरा। डिबेट आपकी साफ सुथरी डिबेट करवाते हैं हम, थोड़ा नहीं सा नहीं, हमें बस ये टाइम दे। डिबेट बस ये जी जी आपने जी, मैं निकाल रहा आपने हूँ। 2 एक झूठ और एक गुस्ताखी कर बट दिया। साहब गुस्ताखी कोई रसूल को साफ आपने सुथरा हमायत ना कर दी। इंसाफ के नाल तुसा दोवां नू बराबर बराबर टाइम देना है। जी जी ठीक है ठीक जी, अब्दुल ठीक है, एक आथम मिनट मैं डिबेट गुस्ताख कराओ, रसूल है, बेहतरीन जी डिबेट कराओ। जी अब्दुल जी आथम बेहतरीन, एक गुस्ताख मिनट। रसूल है, मुफ्ती साहब आपने उसकी हमायत चले कर अब दी। नजीर साहब को आप मौका दें, मैंने काफी लंबी चौड़ी इबारत भी पढ़ी और ये वो, और भाई उनका आधी टाइम से शुरू आधी करें। से ज्यादा दुनिया तो जोन सी है वो मिर्जे को जोन सा वो गुस्ताखी रसूल मानती है, तो उसको फिर गाली देना जायज है? नहीं नहीं, आप तो जो ये साबित करें ना, आप लोग तो झूठ बोल रहे हैं ना, आप सामने सामने झूठ बात करते हैं, गलत आसफ बात। साहब आप डिबेट करना चाह रहे हैं नजीर साहब से? अब्दुल्ला आथम गुस्ताख नहीं, रसूल आसफ था, साहब को मुफ्ती कर साहब ने लेने उसकी दें, हमायत उनको की है। शायद कोई अब्दुल्ला आथम गुस्ताख तो रसूल क्या था, है। मुफ्ती साहब ने उसकी नहीं, हमायत एक मिनट कर दी। नजीर साहब, एक मिनट रुक तो जाएं। आसफ हाँ साहब आप बात करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं भाई, आप लोग गुस्ताख रसूल की हमायत करते हो, मैं नहीं बात करता भाई। आप नहीं, लोग कोई बात नहीं, अब्दुल्ला आसफ आथम की साहब हमायत आपसे करते बात हो। करना चाह रहे हैं तो इनकी करा देते हैं डिबेट। इस ब्राड पे कौन अब्दुल्ला आथम की हमायत करता है जो गुस्ताख रसूल है? साहब बताएं कि अगर हमायत करते हैं मैं जा रहा हूँ, या आप लोग गुस्ताख रसूल की हमायत कर रहे हैं? नहीं भाई, मैं बात नहीं करता। अब्दुल आथम गुस्ताख रसूल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता था, इस्लाम की शान में गुस्ताखियां करता था, हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां करता, गुस्ताख अच्छा रसूल नजीर था। साहब, एक आप क्वेश्चन है, उसकी हमायत मासूमाना कर रहे हो, क्वेश्चन है। मैं नहीं, मैं नजीर नाराज होके जा रहा हूँ भाई। आप लोग ए गुस्ताख रसूल नजीर की हमायत साहब कर रहे बहाने ना खोजो, नजीर साहब बहाने ना खोजो, बात सुनो मेरी बात सुनो। सिर्फ एक मासूमाना सवाल है। हो। नहीं, आदम मासूमाना गुस्ताखी गुस्ताखे करते रसूल हैं। था, चले ठीक है, मैंने मान लिया आदम गुस्ताखे रसूल था, ठीक है मैंने मान लिया। हाँ जज़ाकल्लाह, लेकिन मुफ्ती साहब से भी बनवाएं, मुफ्ती साहब सुने से। ना, सुने मेरी बात सुन लेना, मेरी बात हाँ सुने जी। नजीर साहब। क्या ये जरूरी है कि आदम की गुस्ताखी की वजह से हम लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहें? नहीं, नाउजुबिल्लाह, कहीं गुस्ताख भी नहीं कहा, आदम है, कहीं भी नहीं गुस्ताख कहा, आदम है। नहीं कहीं भी ईसा नहीं तो कहा। हमारे भी नबी है ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तमाम तो अंबिया फिर हम लोग मौजूद उनकी हैं। गुस्ताखी क्यों करें? आपके हज़रत मिर्जा मसीह साहब ने तो वही काम किया हुआ ना, नहीं किया ईसा कहीं भी नहीं हुआ है। अलैहिस्सलाम के बारे में जो ना वो की गुस्ताखी की हुई नहीं, है। वो तो उनसे मोहब्बत करते हैं, वो उनका मसील अपने आप को कहते हैं, उन्हीं के रंग पर आए हैं, वो तो उनसे मोहब्बत करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। ऐसे आप लोग गलत बयानी करते हैं ना। अच्छा जी, और मुझे ये आप बताएं अब्दुल कि आथम, ये मुफ्ती साहब आथम तौबा करें, बड़ा अब्दुल आथम गुस्ताख की हमायत रसूल की था है, या तौबा गुलाम करिए। अहमद बड़ा गुस्ताख रसूल था? नहीं, मुफ्ती गुलाम साहब अहमद तो तौबा करें, आथम से गुस्ताख ज्यादा रसूल बड़ा की हमायत गुस्ताख की है। रसूल हुआ है। ये मुफ्ती अच्छा साहब तौबा मुझे करें, मुझे गुस्ताख ये रसूल की बताएं कि हमायत की है। दुनिया में गुलाम अहमद से बड़ा कोई गुस्ताख रसूल बता दे मुझे, इनाम ले लें। भाई आप खामोश हो जाएं, आप मुफ्ती साहब से बात तौबा करवाएं। मुफ्ती साहब ने गुस्ताख रसूल की हमायत की है, नहीं तौबा करवाएं देखे, रमजान में। गुलाम अहमद से बड़ा कोई गुस्ताख रसूल मुझे ला के दिखाए दुनिया में। ओ भाई, आप तो उससे भी बड़े गुस्ताख होते हो, कोई इंसान हो ओ आपके भाई आपकी जानना है ज़बान तो, ओ उसी भाई तरह जानना ही है आप तो खामोश जाओ हो जाएं। भाई, ओ भाई जानना आपने है तो भी जाओ, ठीक है। रमजान में गाली देनी है। मिर्जा को किसी ने नहीं मानना, ठीक है, मिर्जा को किसी ने नहीं मानना, गुलाम आपने अहमद जानना है से तो बड़ा जाओ। गुस्ताख रसूल सबसे आज तक बड़ा कोई हुआ ही गुस्ताख कोई नहीं। मिर्जा था, सबसे बड़ा गुस्ताख मिर्जा था, ठीक है। उसको गालियां दें तो फिर वो आपको तकलीफ होती है। और एक एथम को मिनट कोई यार। सपोर्ट नहीं कर रहा, एथम को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। हम जो मिर्जा ने गालियां दी हैं हम ये उसकी मुफ्ती बात साहब कर ने रहे हैं। की है, मुफ्ती साहब ने उनकी हमायत की है, वो गुस्ताख उन्होंने कोई रसूल जी सपोर्ट है। नहीं की, मिर्जा उन्होंने ये मिर्जा कहा, आपके उन्होंने भाई ये ने कहा से है, माना, मुनाजरा आपके आ भाई ने गया माना था। कि हाँ वो गुस्ताख रसूल मिर्जे है, का उन्होंने मुफ्ती साला मुनाजरे साहब की जो है बात वो की सही है हो कि गया था, मुनाजरे सगा में साला। मिर्जे ने गालियां दी, उन्होंने ये ये कहा रमजान कि में मिर्जा ने तौबा गालियां करें भाई, और गुस्ताख जब रसूल मिर्जे का मुफ्ती साहब ने साला हमायत सही कर हो दी। गया तो वो आए थे मिर्जे के घर के बाहर, आतिशबाजी की थी उन्होंने मुफ्ती साहब ने कागज को गुस्ताखी बाहर कर दी है निकालो, भाई। और मुफ्ती साहब मिर्जा ने शायद घुस गया था शातमियत जहां से की है। निकला था। मुफ्ती साहब ने रमजान में शातमियत की, अब्दुल्ला आथम गुस्ताख रसूल की हमायत कर दी। ये भाई बहुत बुरे, सुनो भाई, ये मुसलमान। नसीर साहब अच्छा मेरी जी, बात सुने, गुलाम आपने अहमद को कहा बंद था कर दें जी, रमजान है, एक गुलाम अहमद को वाकई बंद कर दें, रमजान में बंद होना चाहिए ये भी। एक मिनट, चलो वो चले गए, ठीक है। तो गुलाम अहमद से बड़ा गुस्ताख रसूल ये गालीबाज, अभी तक तो मैंने बाबर कोई भट्ट साहब मजहबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुफ्ती साहब क्या हाल है जनाब? ठीक है। की हाल है बाबा जी, किथे गैबो गैब हो? मुफ्ती साहब ऐसे ऐसे आ जाते हैं गुस्ताख। कल मैनू परसों एक बराड़ ते कादियानी कहंदा है, जरा गल सुनन वाली है, इन्हां दे दिमाग भी तो इहो जिहे ना, कहंदा है कि सानू तबलीगां कर दिओ ते अपनियां मावां भैणां नू करो, ते पाकिस्तान च हर महल्ले च गश्तियां बैठियां ने, गश्तियां नू ते कंजरियां नू तबलीग करो। मैं कहा यार करी दी ते है,
ਔਰ ਗਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਗੈਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਸ਼ਤੀ ਦੀ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਗੈਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ 200 ਝੂਠ ਜਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਲਮਾ ਵਗੈਰਾ, ਜੀ ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਲਾ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ੇਬੋ ਫਰਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ? ਮੇਰੀ ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ 10 ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਰ ਜਿਤਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਜ਼ਿਆਰ ਸੂਰ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਛੋੜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਣ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰਬੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਤਨੀ ਮਿੱਟੀ ਮਰਬੀਆਂ ਦੀ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣ ਹੋਵੇ, ਐਡੇ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕ। ਓਏ ਹੋਏ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਸਾਲ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਗੁੱਜਰ 302 ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਲਵੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਗ ਲਾਈਏ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇ ਉਹਦੀ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ 1 to 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। शाह जी एक क्वेश्चन है जी, शाह जी एक क्वेश्चन। अच्छा हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जी उनका ये नजरिया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जो ना वो वफात पा ना चुके जी हैं? ना, ना जी ना, कदी भी नहीं। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ सफा ਅਸੀਂ नंबर चैलेंज करने हैं। बात सुने जरा, बात सुने। हम चैलेंज कर रहे हैं करसे का कि जनाब ये अकीदा, इस अकीदे का जो पहला बंदा था वो था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के बाद मिर्जे कादियानी ने इस अकीदे को सर सैयद अहमद खान से लिया था। और सर सैयद अहमद खान को भी ब्रिटिश ने खड़ा किया था और इसको भी ब्रिटिश ने खड़ा किया। तो उससे पहले किसी दुनिया के किसी एक बाबे बुजुर्ग की किताब, कोई तफसीर, किसी हदीस की शरह, किसी हदीस कुरान की आए है ही नहीं, ये कीदा मिलता ही नहीं है आपको। ये चैलेंज हमने किया हुआ है, आज तक किसी कादियानी ने इस चैलेंज को तोड़ा नहीं है। मुफ्ती और साहब अगली बात यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हों या मुर्दा हों, मिर्जा कादियानी गाली गलोच से कैसे बाज आएगा? मिर्जा कादियानी शराब नोशी से कैसे खत्म होगा? जिनाकारी उसकी कैसे खत्म होगी? वो सारे ये गंदे काम करता था। हजरत ईसा से इन सब बदकारियों का क्या ताल्लुक है? हजरत ईसा जिंदा हो या मुर्दा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਬਾਬਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡੀਏਟਰ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਦਾ। ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ। अच्छा शाह जी अस्सलाम वालेकुम यार, एक सेकंड सारे भाई, एक सेकंड माजरत दे नाल, एक सेकंड सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी है कि जिस टाइम बड़े बैठे ना उस टाइम थोड़ा जिहा तामल रखा करो डिबेट ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਜੇ हम ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਗੁੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸਣ ਦੀ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਸ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ।
ایک بٹ صاحب 1 منٹ جی، میں نے جو سوال کیا تھا نا شاہ جی سے، شاہ جی یہ صفحہ نمبر 34 پہ وہی آتم والے میں اس نے حضرت امام مالک کے اوپر جو نا وہ باندھا ہوا ہے جھوٹ، اور حضرت امام بخاری پر بھی جھوٹ باندھا ہوا ہے اوے سر۔ ہاں وہ تو مرزے کی تو بات ہی کچھ اور نرالی ہے نا. لو اس نے کبھی کوئی سچ بولا ہے؟ کوئی ہاں ایک اگر سچ مسیح آج تک اس نے بولا ہی نہیں ہے. اور ہاں میں کہہ اگر رہا ہوں ادھر مسیح دیکھے وہ کی کہتا ہے پورا صفحہ پڑھ کے سناؤ. پہلے تو ایک بات تھی، جب پورا صفحہ پڑھا تو 10 چیزیں سامنے آ گئی ہیں. بتائیں یہ جتنا کہتے ہیں نا میں پیچھے سے 2 صفحے پڑھو آگے سے 2 صفحے پڑھو، وہ اتنے زیادہ پھنس جاتے ہیں کہ مرزے کی ایک ایک تحریر ایک ایک سطر جو ہے نا اس کے اندر غلاظت ہے. اچھا یار یہاں دوست بیٹھے ہیں، توجہ سے سارے دوست سن لیں اور پیغام بھی میں دے دوں. یہ ابھی ایک پوسٹر میں یہاں پہ لگانے لگا ہوں، اور یار یہ محفل سجنا دی ہٹائیں گے ذرا سپیکر تھوڑی دیر کے لیے. لو جی ہاں ہٹ گئی یہ نا اس کی سکرین شاٹ لے لیجئے گا دوستو جلدی جلدی، کیونکہ میں نے اس کو ختم کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. اور بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا. سکرین شاٹ لے لیں. لو جی جامعہ ختم نبوت الحمدللہ اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور یہ طلباء کے لیے اور طالبات کے لیے الحمدللہ ابھی چونکہ جگہ ہم خریدنے کی اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بنا بنایا گھر ہمیں کرائے پہ مل گئے. تو ہم نے کہا جی کام تو شروع کیا جائے نا، کیونکہ مدارس کے اندر جو داخلے ہوتے ہیں نا درس نظامی کے اس کے مخصوص مہینے ہیں، کیونکہ ابھی چھٹیاں ہیں، اور 10 شوال یا 15 شوال تک پورے پاکستان کے مدارس کے اندر لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں ان کے وہ داخلے ہو جاتے ہیں اور کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے ہم مجبور ہو گئے کہ اب نہیں تو یہ سال بھی ضائع ہو جانا تھا، تو ہم نے پھر کرائے پر وہ لے کے نا ڈیسیجن یہ لیا کہ کم از کم کام شروع کیا جائے، اور ابھی تعلیم شروع کرتے ہیں بچوں کی، اور بچے اور بچیوں دونوں کی داخلے کرتے ہیں. تو جب اپنا بنے گا تو یہی سارے بچے اٹھا کے ہم اپنے ادارے میں شفٹ کر لیں گے، اور ہمیں ایک تعداد بھی اچھی خاصی مل جائے گی انشاءاللہ. تو یہ کلاس اب گجرانوالہ میں آپ کے جو بھی دوست صاحب آپ رہتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے. داخلے اوپن ہو گئے ہیں تو داخلے لیں بھائی. لڑکیوں کا جو ٹائم ہے وہ 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک کلاس ہے، اور لڑکوں کی کلاس نائٹ کلاس ہے، نائٹ کلاس، تاکہ اس کے اندر مسجدوں کے جو ائمہ کرام ہیں جنہوں نے درس نظامی نہیں کی ہوتی، وہ صرف حافظ قرآن ہوتے ہیں بیچارے، تو وہ بھی اگر شرکت کرنا چاہیں تو بآسانی وہ اپنی مسجد کی نماز پڑھا کے تو وہ کلاس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. تو اچھا یہ مفتی ٹائمنگ صاحب، رکھی ہے. یہ نیچے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب پیسے مانگ رہے ہیں، تو مفتی صاحب نے کوئی گھوڑے تھوڑے رکھے ہوئے ہیں جو جوئے میں دوڑتے ہوں اور نہیں ان کو جا کے، پیسے اور نہیں میں مانگ رہا، میں دوسرا داخلے یہ مانگ رہا ہے ہوں کہ کہ مفتی داخلے صاحب کو کروائیں. مرسیڈیز گاڑیوں میں تھوڑا بیٹھتے ہیں یا محمود شاہ کی کوئی طرح بات نہیں، زنا کہنے کر دے کے کہنے 2 بجلیاں؟ بٹ صاحب وہ کوئی ٹینشن نہیں، ان چیزوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں، ان نہیں، کے رتی پیسوں برابر سے نہیں. میں نے جی بولا نا بہت کہ بہت 2 مبارک ہو شاہ جی. پاؤنڈ کا زنا کرتے ہیں یہ محمود شاہ، شہگی کوئی شاہ. پرواہ ہی نہیں ہے. تو شارپ بہرحال شوٹر یار صاحب میں نے آپ کو گجرانوالہ بنا میں دیا ہے جو مڈریٹر، دوست ٹھیک ہے. ہیں یہ پیغام پہنچائیں ان تک، ان ٹھیک ہے، میں فیملیز تک، دیکھتا ہوں. اور داخلے ہمیں لے کے دیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تقابل ادیان اور مذاہب کی تعلیمات ہوں گی درس نظامی کے ساتھ ساتھ تقابل ادیان و مذاہب کی تعلیمات ہوں گی انشاءاللہ. اور یہ اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ ہے ہماری اطلاعات کے مطابق اور ہماری ریسرچ کے مطابق. پوری ورلڈ کے اندر اس قسم کا ادارہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارا نصاب ہے یا جو ہمارے اغراض و مقاصد ہے وہ پوری ورلڈ کے اندر شاید کہیں پر بھی نہیں ہے. اگرچہ یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن ادارے کی نوعیت کے اعتبار سے اور اغراض و مقاصد کے اعتبار سے یہ دنیا کا منفرد ادارہ ہے الحمدللہ. تو بہرحال ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے.
बकाया फिर देखते आगे आगे होता है क्या। जी साकी भाई आपको रिक्वेस्ट भेजिए यार, ऊपर आ जाएं। ये जमात अहमदिया से ताल्लुक है साकी भाई से, जरा ये ऊपर आए तो इनसे कोई गपशप करें। और साकी उत्ते आना यार, के दंद खोलने दी टाइम नहीं ते उत्ते आ जा। शाह जी बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक खैर सबका मुबारक, खैर और बरकत डाले। खैर मुबारक, आमीन आमीन। जी बहुत बहुत मुबारक हो जी। जी खैर मुबारक। अपना मुफ्ती साहब, मुझे ये समझ नहीं आती, वो जो बंदा आया था वो कह के गया जी कि मुफ्ती जो है वो नादर के सामने 2 मिनट टिकते, तो अभी क्यों नहीं आ रहे फिर इधर? उनको गैरत है तो फिर आए। इनकी तो क्या ही बात है, ले ये शुक्र करे उन्होंने नादर के ऊपर डाल दी बात है, उन्होंने अपने ऊपर नहीं डाली कि मैंने भी मुफ्ती ने चुक चुक के मारे हुए। और नहीं मुफ्ती साहब नहीं बदतमीजी करते यार। साकी तुम ऊपर आओ, की तो मैं जिम्मेदार हूँ, जाओ मेरी जिम्मेदारी है। मैं ते कमेंट पढ़दा कोनी जे है ते पता नहीं की। और नहीं साकी ये ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਲਾਂਤੀ ਹੋ ਇੱਧਰ ਪੈਸੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਮ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਸੁਨਾ ਚਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਭਾਈ, ਘੋੜੀ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਜਨਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਘੋੜੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਚ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਲਬੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਕਲਬੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਚ ਉਤਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਾਂਤ ਉੱਥੇ ਜੂਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਪਰ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮਰਸਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਰਪੈਟਾਂ ਪਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਾ ਛੋੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਕਾਰੇ ਖੈਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਮ ਦਿਓ, ਸ਼ਰਾਬਾ ਸ਼ਰੂਬਾ ਪੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੀਗਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਬਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पैगाम यार मेहरबानी दोस्तों ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੈगाम ਪਹੁੰਚਾਓ ਬਈ। ਹੈ जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह, तुसी आए, अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। बुलंद फरमाए। वालेकुम अस्सलाम। लो जी बाबर साहब, चल बे साकी